مگر قازان لالا تو ہمارے سے نفرت کرتے ہیں مورے، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی۔ وہ جتنا اس کے نزدیک ہونا چاہتی تھی وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی، جواب میں وہ اسے غصے سے گھور دیتا اور نوری کی رہی سہی ہمت وہیں جواب دے جاتی تھی۔ نفرت کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالتے، وہ بڑا ہے نا، اور شروع سے اس کی عادت ایسی ہی ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے اور ہماری نوری سے بھی کرتا ہے۔ پرکھا اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ نوفیل نے سنجیدگی سے پرکھا کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نوری اس کی گود سے اترتے صحن کی جانب بھاگ گئی۔ ہمارے خیال میں غازان کا رویہ اکیلا ہونے کی بدولت ہے، کیونکہ باپ تو ہر وقت کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ماں کی کمی ایک اولاد کو زندگی کے ہر لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو تربیت ایک ماں کر سکتی ہے وہ ایک باپ نہیں کر سکتا۔ شہرام کو اب سنجیدگی سے اس بابت سوچنا چاہیے۔ وہ اپنے تجربے کے مطابق نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولا۔ آج اسی بدولت تو بات کرنے ہم دونوں یہاں آئے ہیں۔ اللہ کرے لالا مان جائیں، ورنہ غازان کی طبیعت ٹھیک سے نہ ہوئی تو وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ ایک بچے کو بچپن سے ہی ماں سنوار سکتی ہے۔ پرکھا سنجیدگی سے بولی۔ اسی دوران شہرام بھی وہیں چلا آیا۔ نوفیل نے اسے نزدیک آتا دیکھ اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور زیرک نگاہوں سے پرکھا کی جانب دیکھا تھا۔ چلو اب ہم نکلتا ہے، تم دونوں باتیں کرو، ہمارے کو ایک بہت ضروری کام ہے، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ان دونوں کو تنہا وقت دینے کے خیال سے مسکرا کر بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شہرام نے صوفے سے پشت ٹکاتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کہو بھئی، بات کرنے آئی ہو وہ کر سکتی ہو۔ کہو بھئی، جو بھی بات کرنے آئی ہو وہ کر سکتی ہو پرکھا۔ شہرام نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ لالا، آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ بے چوتاب کھاتے ہوئے بولی۔ شہرام نے ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا تھا اور سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ پرکھا نے گہرا سانس بھرتے شروع سے لے کر آخر تک غازان کے رویے کی ایک ایک بات اس پہ گوش گزار کر دی۔ وہ شہرام کو کسی صورت اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دراصل وہ ڈرتی تھی ایک بار پھر پشمینے کے اجاگر ہونے سے۔ جو بھی تھا تو وہ اسی کی کوکھ سے جنما ہوا، تو پھر کیسے ایک ماں کی خوبیاں بیٹے میں نہیں آ سکتی تھیں؟ یہ تو پھر ایک فطری عمل تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ شہرام نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو باہم ملاتے چہرہ جھکا لیا۔ پرکھا نے چند ساتیں گزر جانے کے بعد اس کے شانے پر ہاتھ جمایا تھا۔ شہرام اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کر لیں تاکہ اس گھر میں عورت کی کمی بھی پوری ہو جائے اور غازان کے لیے ایک ماں بھی۔ وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کیونکہ شہرام کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پرکھا کو اس سے خوف آنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، شادی کر لیتا ہوں، مگر کیا بھروسہ ہے کہ شادی کے بعد وہ عورت میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہے گی؟ میری غیر موجودگی میں اسے کچھ کہے گی نہیں، اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرے گی، اسے وقت پر کھانا دے گی، اس سے محبت کرے گی؟ کیا بھروسہ ہے اس بات کا؟ مجھے یقین بخش دو کہ میں حامی بھر لوں گا۔ وہ پتھریلے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ بھائی، اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی۔ شہرام نے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سے جاتے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ کیا سوچے ہوئے ہو آپ؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز پر پرکھا نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ لالا رخ سے نکاح کر لیں۔ لالا، وہ بہت اچھی ہے، وہ اس گھر کو سنبھال لے گی، آپ کو بھی اور غازان کو بھی، کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، اور وہاں مورے نوفیل ہم سب راضی ہیں۔ لالا رخ سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی رضامند ہو جائے گی۔ غازان کو ایک ماں چاہیے، وہ بھی بہت ضروری، تاکہ وہ مزید بگڑتا نہ چلا جائے۔ اس کی بات پر شہرام کو اپنے اطراف میں دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ایسا لگا جیسے حویلی کی پوری عمارت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس نے آنکھوں میں عجیب سا تعصب لیے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک خوف ہلکورے کھا رہا تھا۔ نہ جانے اب شہرام کا فیصلہ کیا ہونا تھا، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ یک لک شہرام کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ الے میرا بابو، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو اتنے سارے بلونز دے دیے آپ کو، ابھی بھی انکل سے ناراضگی؟ وہ زیمل کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولا۔ جواباً اس نے اس کی شرٹ کی اوپری جیب میں سے چاکلیٹ نکالتے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ یہ میرے لیے ہے نا؟ وہ چمکتی آنکھوں سمیت بولی۔ عاشق نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اگر میں نہ کہوں تو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ زیمل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے چاکلیٹ اس کی جیب میں اڑس دی تھی۔ ایک کیا، میرے بابو کے لیے تین چاکلیٹس آئی ہیں۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنے عقب میں سے چاکلیٹس نمودار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں، جسے وہ کھلکھلا کر تھام گئی تھی۔ تین صرف میری نہیں، اس میں سے 5 میں پھپھو کے لیے رکھوں گی، اور جب بھی آئیں گی میں انہیں دے دوں گی۔ وہ چہکتے ہوئے بولی اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ عاشق اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی پھپھو آئے تو صحیح، انہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا، ویسے بھی میرے وجود میں حرکت کرتا دل تو ویسے بھی وہ لے ہی چکی ہیں، وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ زیمل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ بولا تھا کیا آپ نے؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ عاشق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے اسے زمین پر اتارا تو وہ بھاگنے والے انداز میں عادل کی جانب بڑھی تھی، جنہوں نے پہلے ہی اس کی جانب اپنی باہیں واہ کر دی تھیں۔
चलो तुम मुझे इसी रेस्टोरेंट में मिलो, मुझे तुमसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। अपने वक़्फ़ से आने वाली सद्दाम की आवाज़ पर आशिफ ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और हौले से इस बात में सर हिलाते जिन कदमों से वहाँ आया था उन्हीं कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। उसके जाते ही सद्दाम ने भी कमरे का रुख किया ताकि तैयार होते रेस्टोरेंट में जा सके। अगले 10 मिनट में वो निकसिक सा तैयार था। आप कहाँ जा रहे हैं? अफीफ़ा ने उसकी तैयारी का तफसीली जायज़ा लेते हैरत से इस्तफसार किया जो स्याह रंग के पैंट कोट में मलबूस था। एक ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। इससे पहले आशिफ से मुलाकात करनी है एक मैंने। वो सरसरी से लहजे में बोलते उसकी जानिब मुड़ा तो अफीफ़ा ने पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा और हौले से सर हिलाकर रह गई। आप आशिफ से जो मर्जी बात कर लें, मगर मैं जानती हूँ परी कभी नहीं मानेगी। अफीफ़ा की बात पे उसके बाहर की जानिब बढ़ते कदम वहीं थमे थे। उसने तिरछी निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम परेशान मत हो, इस काम को मेरे सपोर्ट कर दो। अब हर काम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा अफीफ़ा, कुछ हिम्मत हमें भी दिखानी होगी। अब तमाम उम्र वो कुमारी रहने से तो रही, और एक उम्र ऐसी आएगी कि उसके रिश्ते तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। खैर से 25 की हो चुकी है परी। वो संजीदगी से उसे बावर करवाते लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। उसके जाते वो अपना दुखता सर दोनों हाथों में गिरा गई, क्योंकि यहाँ सब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे थे। कोई भी परीसा को सोचकर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसका दिल आने वाले लम्हात का सोचते लरस गया। वहाँ से निकलते सद्दाम ने गाड़ी सीधा रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ाई थी। वो उससे सीधी बात करना चाहता था। वह जो ही एक पुरतरीज से रेस्टोरेंट के सामने रुकी और जो ही वो अंदर दाखिल हुआ उसे सामने ही वो बैठा हुआ दिखाई दिया था। बैठो। उसके नज़दीक पहुंचते ही आशिफ ने उसे बैठने का इशारा किया और अपने कोट का बटन खोलते चेयर खींचकर उस पर विराजमान हो गया। कोई बात करनी थी तुम्हें मुझसे? वो उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोला। हाँ देखो, मैं सीधी और दो टोक बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम घर में होने वाली पूरी बात सुन चुके हो। इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ से निकलते तुम्हें खुद देखा था। वो गहरा सांस भरते हुए बोला। आशिफ दम साधे उसकी बात को मुलाहिजा कर रहा था। आखिर में नजरें चुरा गया। बाबा ने जो बात की थी उससे मैं 100% मुत्तफिक होता, अगर मैंने तुम्हें उस दिन किसी लड़की के साथ ना देखा होता तो। वो जताने वाले लहजे में बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लड़की? वो हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाया। उसके जहनों गुमान में भी नहीं था कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। मान उसके जहन में एक धमाका सा हुआ। ओह अच्छा, तुम फाइका की बात कर रहे हो। वो तो बस मेरी एक कॉलीग थी जहाँ मैं पहले जॉब करता था। पसंद करती थी मुझे, मगर मैंने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली उस सब में। मुझे शौक ही लायक नहीं हुआ इस किस्म का कोई। वो गहरा सांस भरते उसकी समातों में पूरी बात उतार रहा था। तुम उसे पसंद करते हो? सद्दाम के सवाल पर उसने चेहरा झुकाते नफ़ी में सर हिलाया। अब वो उसे क्या बताता कि वो किसे पसंद करता है और किस हद तक करता है। अब एक भाई के सामने उसकी बहन से मोहब्बत का एतराफ़ वो करने से रहा। नहीं, वो मुझे करती है। वो धीमे लहजे में बोला, निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं। और तुम किसे करते हो? सद्दाम की बात पर उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया। वो उसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सका। वो बोलकर तल्खी से हंसा, जैसे अपना ही मजाक बना रहा हो। मैंने एक ऐसे शख्स को दिल दिया है जो मेरे लिए ला हासिल के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारे बहुत करीब है, वो अपने वजूद का हिस्सा भी कह सकते हो। वो अजियत ज़दा लहजे में बोला और सरल से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सद्दाम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, जो अब मोबाइल कान से लगाते उसे माजरत करते वहाँ से निकलता चला गया। वो जानता था कि अगर वो मज़ीद 2 मिनट भी यहाँ ठहरा तो लाजमी अपना ज़ब्त खो देगा, जो वो 4 सालों से बनाते बनाते थक गया था। उसके यूं उठ के जाते ही सद्दाम ने उसकी पुश्त को तकते हाथ की मुट्ठी बनाते लबों पर जमा ली। उसके दिमाग की रगें फूल चुकी थीं। उसके दिमाग ने तेज़ी से काम करना शुरू किया था। घड़ी रात के 8 बजा रही थी। पूरे घर में सन्नाटे का राज था। दोनों फूस लाउंज में सोफे पे खामोशी से बैठे किसी के मुंतजिर थे। घड़ी की मखसूस टिक टिक की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। ये आज आ जाए सही, ये कोई वक्त है भला? बाहर बारिश बरस रही है और इसे देखो ज़रा, रात के इस पहर ना जाने कौन सी रंगरलियाँ मनाता फिर रहा है। आफताब की कड़कदार आवाज़ लाउंज की फिजा में गूंजी तो कुलसूम ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। बच्चा थोड़ी ना है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो भी करे। और वैसे भी अब कौन सा वो बस घूमता फिरता ही है। आपके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर भी उसी ने पहुंचाया है। गुजरे सालों में कैसे मेहनत की है उसने। वो जताने से बाज ना आई। आफताब ने खशमगी निगाहों से उनकी जानिब देखा, जो अपने बेटे की तरफदारी करने में हमेशा सरे फहरिस्त होती थी। हाँ ना, इतनी मुशक्कत की है कि बहुत जल्द वो आसमान में मेरा घर भी बनाने वाला है। हम बहुत जल्द अपना साजो सामान लेते वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहती हो तुम? वो चिढ़कर बोले। कुलसूम ने मुस्कुराकर उनकी जानिब यूँ देखा जैसे उनका मजाक बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। बहुत शुक्रिया, मगर मैं इस ज़मीन में ही ठीक हूँ। आप ही जाएं आसमान पे, 70 हूरें भी इंतज़ार कर रही होंगी आपकी। वो चटक कर एक अदा से बोली और अपने जोड़े को संवारने लगी। वो उनकी बात पर बिदक कर रह गए। वो किस किस्म की बात कर रहे थे और वो बातों का रुख किस जानिब ले जा रही थी। उन्होंने दांत किचकिचाते उसकी जानिब देखा। इसी दौरान पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ पर इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। आफताब तो कोई अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड, वो ऊंची आवाज़ में बोलते सर खम कर गया। उसकी बात पर इससे पहले कि आफताब गरज दे, उसके साथ आती मरियम को देख उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल तन्हा थे। उन दोनों ने ठटक कर एक दूसरे की जानिब देखा और निगाह सरतापा मरियम पर डाली, जो उनकी निगाहों से घबराते अपनी पेशानी मसल रही थी। ये तुम्हारे माँ बाप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मरियम ने उसके नज़दीक झुकते उसे मुखातिब किया। तुम दुनिया का 8वां अजूबा जो हो, और अजूबों को ऐसे ही देखा जाता है। जवाबन वो पुरसकून लहजे में बोलते उनका सुकून सिरे से गारद कर गया। मरियम का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। आइए तशरीफ़ रखिए साहबजादे साहब, क्या पेश करें आपकी खिदमत में? आफताब उस पर तंज करने वाले अंदाज में बोले तो फारिस ने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। फिलहाल तो बस जितनी गालियों का ज़ख़ीरा अंदर जमा किया हुआ है वो ही बाहर उगल दें, इससे पहले कि वो फट जाए। वो दिल जलाने वाले लहजे में बोला। वो उसकी बात पर जलकर राख भी हो गए। सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ थे और मरियम के साथ कैसे हैं? और मरियम के साथ कैसे? सब ठीक है ना? ने नरमी से इस्तफसार किया। मरियम गहरा सांस भरकर रह गई। जी मॉम, बस बाहर बारिश हो रही थी और हम सबको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो इसलिए बस मरियम को मैंने घर ड्रॉप करना था। मगर वापसी पे बारिश हो गई और मैं बुरी तरह भीग गया, इसलिए सोचा कि घर जाकर फ्रेश हो जाऊं, साथ ही से ड्रॉप कर दूंगा। मॉम, आप अभी से अपने वॉशरूम तक ले जाएं, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। वो संजीदगी से बोला तो समीना ने मरियम को अपने वॉशरूम का रास्ता दिखाया और वापस लाउंज में आई, जहाँ वो सुकून से मोबाइल में गेम खेलने में मुहफ था। क्या चाहते हो तुम फारिस मियाँ? तुम्हारे दोस्त इतने आगे निकल चुके हैं, घरेलू ज़िंदगी में भी और ऑफिस वगैरह में भी, मगर तुम वहीं के वहीं हो। आफताब गुस्सीले लहजे में बोले। फारिस ने ज़रा सी निगाहें उठाते उनकी जानिब देखा और मोबाइल लॉक करते एक जानिब रखा था। क्या चाहते हैं आप? वो नासमझी से गोया हुआ। हमारी छोड़ो, हम जो चाहते हैं उस चीज़ की तुम्हें शुरू से ही कोई चाह नहीं है। तुम अपनी चाह के बारे में बताओ, क्या हमें कब्रों में उतारने के बाद भी लाना चाहते हो? वो सर मोहरी से गोया हुए। फारिस का कहकहा उनकी बात पे बेसाख्ता था। क्या बात कर रहे हैं यार डैड, अब मेरे बच्चों को कौन संभालेगा फिर? वो हंसते हुए मज़े से बोला। क्यों, तुम्हारी बीवी क्या करेगी फिर? वो खूना शाम निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए गरजे। देखें, आप मेरे बच्चे संभालिएगा, वो आपका बच्चा संभालेगी, हो गया ना हिसाब बराबर? वो दाएं आंख दबाते शाहाना लहजे में बोला। वैसे क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? कलसूम उसके साथ जुड़कर बैठते दोस्ताना लहजे में बोली। फारिस ने नरमी से मुस्कुराते उनकी जानिब देखा। बस सारा साल ऐसी ही दिल खुश करने वाली बातें करती रहा करें, यकीन करें बहुत हसीन लगती हैं। वो उनका गाल छूते मोहब्बत से बोला। कलसूम उसकी बात पर सटपटा कर रह गई और खिफ़्फ़त से सुर्ख पर्दा चेहरा झुका गई। इतनी देर में मरियम भी आ गई तो वो सरस से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि रात मजीद गहरी होती जा रही थी। मरियम उन दोनों से मिलते वहां से बाहर की जानिब बढ़ गई। गाड़ी के नज़दीक पहुंचते ही फारिस ने अंदर से एक शॉपिंग बैग निकालते उसकी जानिब बढ़ाया था। मरियम ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। ये क्या है? अब वो शॉपिंग बैग का मुआयना करते हुए बोली। कपड़े। फारिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते यकलफ्ज़ी जवाब दिया। किस किस्म के कपड़े? मरियम ने शक भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा, क्योंकि उसे किसी ढंग के काम की तवक्का नहीं थी। ढंग के कपड़े जो तुम्हें लाजमी पहनने चाहिए। फारिस उसका गाल थपथपाते हुए बोला तो वो दांत पीस कर रह गई। मैंने अभी भी ढंग के कपड़े ही पहने हैं। वो उसकी बात पर अच्छा खासा बुरा मना गई थी, शायद तभी मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते हुए बोली। उसकी बात पर फारिस ने सरतापा उसका जायजा लिया, जो हमेशा की तरह पैंट शर्ट में मलबूस थी। वो लबों को गुलाई की सूरत में करते हाथ की मुट्ठी बना गया। अगर तुम इन फटे हुए कपड़ों का ढंग का कहती हो, तो फिर तुम्हारी सोच भी इन कपड़ों की तरह फटी हुई है। वो शाने उचकाकर बेनियाजी से बोलता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। हमेशा की तरह अपनी इस कदर बेइज्जती पर वो तिलमिला कर रह गई। ये लड़का उसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। न जाने वो किस कदर मुश्किलों से इतने ब्रांडेड ट्राउजर और पैंट्स खरीदती थी, और फारिस उसे 2 सेकंड में 2 कौड़ी की करके रख देता था। वो दान पे दान जमाते घुट कर रह गई। आज आपने ये बात कर ली, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लें। आइंदा अगर आपने इस किस्म की कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा परखा। वो शहादत की उंगली उठाते उसे सख्ती से तंबीह करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लाला, क्या हो गया है? हम तो आपकी खुशी की खातिर। मेरी खुशी? इसमें मेरी खुशी कहाँ है परखा? कहीं कोई अहमियत है मेरी किसी भी फ़र्द के लिए, जो हर कोई कभी भी उठकर आ जाता है मुझे एक नया ज़ख्म देने के लिए? मुझे अब मज़ीद अजियतों की ज़रूरत नहीं है, तो खुदारा अब इस किस्म की कोई बात ना हो। वो उसकी बात दरमियान में उचकते खुरदरे लहजे में गोया हुआ। लाला रुख बहुत अच्छी है लाला, वो संवार देगी सबकी ज़िंदगियों को। भोली सी है, ज़माने की चालाकियाँ उसमें नहीं हैं। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली तो शहराम ने तेज़ निगाहों से उसकी जानिब देखा। इससे इनकार की सबसे बड़ी वजह जानती हो क्या है? कि वो मेरे बच्चों जैसी है, जैसी आप हो वैसी ही वो है। मैंने उसे हमेशा उसी निगाह से देखा है। और परखा प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ इनफ इज़ इनफ, नहीं करनी मुझे शादी। वो सख्ती से मुठ्ठियाँ भेजते हुए बोला। आंखों में बेतहाशा नागवारी दर आई। परखा उसकी बात पर खामोशी से चेहरा झुका गई थी। नुफेल को
वही जानती थी कि उसने कैसे मनाया है, क्योंकि नौफेल को ये बात अच्छे से अजबर थी कि अगर शहराम की शादी लाला रुख से होगी तो सरासर दोनों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ना शहराम उसे वो हकूक दे पाएगा और फिर रुख की हक तलफी होगी। तो फिर ठीक है, आप शाइस्ता से कर लें, मगर कर लें। वो तो इस घर को इतने अरसे से संभाल रही है, उसे एक एक चीज़ के बाबत इल्म है। गजान के बारे में वो जानती है, उसे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम किसी भी हालत में आपकी शादी करवा कर रहेंगे, हम आपको तनहा नहीं देख सकते। वो सर झटकते हुए बामुश्किल अपना गुस्सा दबाते हुए बोली। शहराम ने खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखा। आपका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। वह मुख्तसरन बोलते पानी का गिलास लबों से लगा गया। परखा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। मगर क्या मसला है अब इसमें? गाजान को मोरे मिल जाएगी। मुझे मम्मा नहीं चाहिए फूफो, आप डैड को क्यों फोर्स कर रही हैं? गाजान की नागवार आवाज़ पर परखा ने चौंक और उसकी जानिब देखा, मगर उसके चेहरे पर सुर्खी देख वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। गाजान, आप अंदर जाओ, ये हमारे और लाला के दरमियान बात हो रही है। बात आप दोनों के दरमियान हो रही है, मगर हो तो मेरे लिए मामा के बारे में है ना? वो जताने वाले लहजे में बोला। परखा ने निगाहें शहराम की जानिब उठाई, जैसे शहराम को जताना चाह रही हो। परखा इसकी इन्हीं बदतमीजियों से खाइफ रहती थी, न जाने वो क्यों बिगड़ता चला जा रहा था। गाज, आप अंदर जाएं, मैं अंदर ही आ रहा हूँ। शहराम की संजीदा आवाज़ में वो ना चाहते हुए भी मुंह बनाते अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही शहराम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। इससे पहले कि वो इसे जवाब में कुछ बोलता, अंदर से आने वाली गैर मामूली शोर की आवाज़ पे वो दोनों सरस से अंदर की जानिब भागे थे। तुमने मेरा फेवरेट टॉय तोड़ दिया। वो गुस्से से नूरी से मुखातिब था, जो उसका खिलौना हाथ में थामे उसके गुस्से से थर थर कांप रही थी। परखा ने तड़प कर आगे बढ़ते उसे सीने में भेजा था। क्या हो गया है गास? एक टॉय ही तो है, बहुत गलत बात है। सॉरी टू हर। शहराम ने जब से उसे हुक्म सादिर किया। गाजान ने जवाब में चेहरा झुका लिया। परखा ने रुंधी निगाहों से शहराम की जानिब देखा था। डैड, ये गिफ्ट मेरी पहली बर्थडे पे आपने। आई सेड से सॉरी टू हर गाजान खान। शहराम के दुरुस्त लहजे पर उसने दांत जमाते उसे सॉरी कहा और भागने वाले अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ गया। इसीलिए बोल रही थी कि कुछ सोच लें, इससे पहले कि सब कुछ गलत हो जाए, क्योंकि औलाद एक बार आज से निकल जाए तो उसे वापस राह पर लाना बेहद मुश्किल काम है, और इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं है। परखा नरमी से उसे कायल करते हुए बोली। शहराम ने उसकी बात को किसी खाते में नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उसे अच्छे से अजबर थी कि बचपन से उसकी तवज्जो गाजान की जानिब से बहुत कम रही है। अपने काम में उलझकर कभी कभार वो उसे फरामोश भी कर जाता था, जिसकी बदौलत उसकी शख्सियत में अभी से सदमोहरी आती गई। मगर अब उसे ही उसके अंदर की इस कमी को पुर करना था। वो दो जानू नूरी के सामने बैठा तो वो रूहानी निगाहों से उसकी जानिब भी देख रही थी। लाला गुस्से के बहुत तेज हैं नूरी, इसीलिए जब्त खो जाते हैं। आप उन्हें नजरअंदाज कर जाया करो, उनकी किसी भी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोला तो वो होले से मुस्कुरा दी थी। शहराम ने मुस्कुराते उसका गाल थपथपाया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप ड्राइवर से बोल दें कि हमारे को घर छोड़ाए, अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है। परखा की आवाज़ पर उसने उसे अपनी तकलीफ में आने का इशारा किया। गाजान ने पर्दे की ओर से जाती नूरी की पुश्त को जलती निगाहों से तका था। सिर्फ उसकी बदौलत वो हमेशा शहराम से डांट खाता था। उसे उससे मजीद नफरत महसूस हुई थी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद ही मुतफक्कर सा शहराम अपनी पेशानी मसलते जूं ही कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर चेहरा झुकाए बैठा हुआ था। शहराम ने एक तासुफ ज़दा निगाह उस पर डाली और अपना रुख अलमारी की जानिब मोड़ा था। उसे बेड पैक करते देख गाजान की आंखें तहय्युर के मारे फैल गईं। वो छलांग लगाकर बेड से उतरा था। आप कहाँ जा रहे हैं डैड? उसकी आवाज़ पर शहराम ने खामोश निगाह उस पर डाली और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं तो बार बार उसे टोक रहा था कि मेरे टॉयज मत छेड़े, मगर उसने वो तोड़ दिया, और वो मेरा फेवरेट था। वो मुंह बसोड़ते हुए शिकायती लबो लहजे में गोया हुआ। शहराम ने तुंद निगाहों से उसकी जानिब देखा। टोकने और गुस्सा करने में बहुत फ़र्क होता है गाज। आप हमेशा उससे बदतमीजी से पेश आते हैं, और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं तो वैसे भी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, जो आप मेरी बात मान लें, कोई मसला नहीं है। जो जी में आता है कीजिए, और डैड को जी भरकर बदनाम करें। वो सर झटक कर बोलते बैग में चंद सूट अपने और चंद सूट उसके डालते बैग की जिप बंद करने लगा। गाजान ने तड़प कर उसकी नाराज़गी देखी। आंखों में नमी ने डेरा जमाया था। आई एम सॉरी। उसके माजरत ख़ाना लहजे पर शहराम ने भी बात को मजीद फैलाने की बजाय समेटना ही बेहतर समझा, तभी ठंडी आह भरकर रह गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने फिर से वही सवाल दोहराया। कराची। शहराम के मुंह से यक लफ्जी जवाब निकला था, और इस नाम के साथ न जाने कैसी कैसी तलख यादें उसके जहन के दरीचों पे उभर कर मादूम हुई थीं। सदाम अंकल के कराची। उसने चहक कर सवाल किया तो वो मध्यम सा मुस्कुराते उसके बाल बिखेर गया। वो जानता था कि गाजान को उसके मुतल्लिक ज़रूर याद होगा, क्योंकि वो उसके होश में भी एक बार एबटाबाद उससे मिलने आ चुका है। अब वो ना जाने के मुतल्लिक कौन कौन सी बातें उसे कर रहा था कि जिसका जवाब देना शहराम पे लाजिम था। अलबत्ता उसकी निगाहें गाजान के दमकते चेहरे पर जमी थी, जो कहीं जाने के नाम से ही किस कदर उतावला हो रहा था।
وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر صدام کے مسلسل اصرار کی بدولت اسے وہاں جانا تھا اور بہت بڑا دل کر کے جانا تھا۔ جب اس نے اپنی دوستی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی تو پھر وہ کیسے اس کی بات کو فراموش کر دیتا۔ اب دوستی نبھانے کی باری شہرام خان کی تھی۔ اسے واپس کراچی لوٹنا تھا، صرف اپنے دوست کی خاطر۔ کیا سچ میں صرف اپنے دوست کی خاطر؟ اس کے دل نے صدا لگائی تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں۔ برلن کی سرزمین پر ایک دلکش شام اتری تھی۔ آسمان پر کالی گھٹاؤں نے بسیرا کیا ہوا تھا، ٹھنڈی ہواؤں نے زور پکڑا ہوا تھا۔ ایسے موسم میں وہ ٹیرس کی کھلی فضا میں ریلنگ سے پشت ٹکائے کھڑی کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ سوچوں کا محور اس وقت صدام کی ذات تھی، جس نے سختی سے اسے عادل کے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب اس کے پاس واحد راستہ اس کے مطابق یہی رہتا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس لوٹ جائے۔ ہاتھوں میں بلیک کافی کا مگ تھامے وہ اس سے چسکیاں بھر رہی تھی۔ ہوا کے زور سے بال فضا میں اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر جھولتی آواراں لٹوں کو کان کے پیچھے اٹسا تھا۔ ایک دم صدام کی باتوں کی بدولت اسے کافی شدید کڑوی محسوس ہوئی تھی، یہاں تک کہ حلق میں اڑ گئی تھی۔ اس نے تلخی سے ایک نگاہ مگ پر ڈالی جہاں کالے رنگ کا پانی تیر رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے کالا پانی ہی تو کہا کرتی تھی۔ اس نے رخ موڑتے دونوں بازو ریلنگ پر ٹکائے تو ذہن پرانی یادوں کی جانب اڑتا چلا گیا۔ ماما، یہ دیکھ لیں آپ بھائی کو کیا کیا پیتے ہیں اور زبردستی مجھے بھی پلاتے ہیں۔ وہ عافیہ کے پیچھے پناہ لیتے چٹک کر بولی۔ عافیہ نے اس کی بات پر گھورتی نگاہوں سے صدام کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک مگ تھا۔ لازماً اس کے اندر بلیک کافی تھی۔ صدام، مت کیا کرو، تم بچے تو نہیں ہو جو یہ کڑوا پانی پیتے ہو، عجیب حرکتیں ہیں تمہاری، اس سے اچھا دودھ پیا کرو۔ عافیہ اسے جھاڑنے والے انداز میں بولی۔ ماما، بچے دودھ پیتے ہیں اور میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اب خود کو مینٹین کرنے میں اور تر و تازہ رکھنے کے لیے، مجھے یہ چیز درکار ہے، اسی لیے پیتا ہوں، چہرے پر گلو آتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ استغفر اللہ، بھلا یہ پی کر کس کے چہرے پر گلو آتا ہے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھو تمہارے چہرے پر کتنی جھریاں آئی ہوئی ہیں، دانے بھی ہیں، یہ پیا کرو، موٹی بھی تو ہوتی جا رہی ہو، بس یہ پیا کرو، بالکل پرفیکٹ ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر پریسا نے پریشانی سے عافیہ کی جانب دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ اس کی باتوں میں مت آنا پری، عافیہ تنبیہی لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پریسا نے صدام کی بات کو دل میں لیتے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو صدام کا چہرہ اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ یہ دیکھو، یہ دانا، یہ کیل مہاسے، رنگت دیکھو اپنی کیسی سیاہ ہو رہی ہے، منہ دیکھو کیسے گول گپا بنا ہوا ہے، ایسے تو تمہارا ہونے والا شوہر تمہیں دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے گا۔ وہ مصنوعی افسوس کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کا حل بھائی، ایک تو میرا قد بھی چھوٹا اور اگر یہ سب چیزیں بھی ہو گئیں تو مجھ میں کوئی ایک اچھی خوبی بھی نہیں رہے گی۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ صدام نے اگلے ہی لمحے اپنے کہے کا گلا گھونٹا، کافی کا مگ سرت سے اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ ٹن ٹنا، یہ لو، اسے پیو، سارے مسئلے خود بخود ٹل جائیں گے۔ مگر یہ تو بہت کڑوی ہوتی ہے نا، وہ اس کی بات کے جواب میں بولی۔ صدام نے ہولے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کڑوا پن کچھ وقتی ہوگا مگر اس کے بعد بہاریں، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا اور مگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ پریسا نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامتے لبوں سے لگایا مگر پہلا گھونٹ بھرتے ہی کافی پھوار کی صورت میں اس کے منہ سے باہر نکلی تھی۔ پیو پیو، شاباش، دیکھو رنگ کیسے نکھرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولا تو پریسا نے خشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ناک بند کرتے آنکھیں میچی اور ایک ہی سانس میں کافی چڑھا گئی تھی۔ اس کے بعد جو وہ کھانسنا شروع ہوئی، عافیہ اور عادل کے کمرے سے باہر نکلنے پر ہی اس کی کھانسی تھمی تھی۔ صدام اس کی حالت سے مزہ اٹھاتے زبردست قسم کا قہقہہ لگا رہا تھا۔ تم نے اسے کافی پلا دی صدام؟ جی ماما، دیکھیں دانے بھی ختم، چہرے کا رنگ بھی صاف اور قد بھی لمبا ہو گیا ہے ٹڈی کا۔ وہ اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تو پریسا نے سختی سے اپنے لبوں کو رگڑتے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یاد رکھوں گی میں ہمیشہ کہ آپ نے مجھے زہر پلایا تھا، بہت برے بھائی ہیں آپ، وہ اس کی کمر پہ در پہ مکے مارتے ہوئے بولی۔ صدام مسلسل اس کی حالت پہ ہنس رہا تھا۔ عافیہ اور عادل نے تعصب سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ویسے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں، اکثر تنہائیوں کی بہترین دوست ہوتی ہے یہ کافی، اس کا اندازہ جس دن تمہیں ہو گیا نا تم مجھے یاد کرو گی۔ وہ اسے جتانے والے لہجے میں بولا اور اس کے بالوں کو بگاڑتے زینوں کی جانب بھاگ گیا۔ پریسا نے چیختے ہوئے اس کے عقب میں دوڑ لگائی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں کے زیر اثر تھی کہ لینا کی آواز پہ وہ خیالوں کی دنیا سے نکلتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا یوں چونکنا لینا نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میم، یور کافی ہیز گون کولڈ، اٹس ایوری تھنگ اوکے، یو آر لاسٹ ان ڈیپ تھاٹ۔ میم، آپ کی کافی تو ٹھنڈی ہو گئی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنی گہری سوچ میں گم تھیں۔ پریسا اس کے لہجے میں اپنے لیے پریشانی محسوس کر کے ذرا سا ہنسی۔ یس، ایوری تھنگ از فائن، ٹیل می اف مائی ورک از ڈن اور ناٹ۔ جی سب بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں میرا کام ہوا یا نہیں؟ اس نے کافی کا مگ سینٹر ٹیبل پر رکھا اور اپنے کوٹ کو کھینچ کر خود پر درست کیا۔ لینا کو وہ اس سر ٹھٹرتی ہوا شام کا حصہ ہی معلوم ہوئی تھی، بالکل سرد اور خاموش سی۔ اس نے قدم اس کی تقلید میں اندر کی جانب بڑھائے جو اب اپنی وارڈروب میں گھسی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ لینا نے فائل میں سے کچھ نکالتے اس کی جانب بڑھایا تھا جسے اس نے تھامتے سنجیدگی سے پڑھا۔
Are the tickets to Pakistan confirmed or not? If not, please contact any agency that knows about me because I have to land in Pakistan tomorrow in any case. It is very important. पाकिस्तान के टिकट्स कंफर्म हो गए या नहीं? अगर नहीं हुए तो आप किसी ऐसी एजेंसी से रब्ता करें जो मेरे बाबत जानती हो, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत कल शाम में पाकिस्तान लैंड करना है। ये निहायत ज़रूरी है। उसने सख्ती से उसे वाज़ेह तंबीह की थी। लीना ने उसकी बात पर सरस से इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। मैम, एवरीथिंग इज़ डन, जस्ट गेट रेडी टू रिटर्न क्विकली। इज़ इट पॉसिबल दैट यू आस्क मी टू डू समथिंग एंड आई डोंट डू इट? मैम, सब कुछ डन हो चुका है, आप बस जल्दी से वापस लौटने की तैयारी पकड़ें। ऐसा हो सकता है क्या कि आप मुझे कोई काम कहें और वो मैं ना करूं? वो जताने वाले लहजे में बोलती उसे साकित कर गई। प्रीसा के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। वो उसके लबों से ये तो सुनने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। वो चाहती थी किसी तरह भी लीना उसे रोक ले, क्योंकि वो इस सरजमीन पे अभी अपने कदम नहीं रखना चाहती थी। लीना ने नासमझी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का मुलाहिजा किया था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट मैम? उसने पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते नासमझी से इस्तफसार किया, तो वो होश की दुनिया में लौटती सरस से इस बात में सर हिला गई और दिलो जान से मुस्कुराते उसकी जानिब देखा, जो मुसलसल बेचैनी से अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर नजर डाल रही थी। वाई आर यू इन सच अ हरी लीना? आप इतनी जल्दी में क्यों हो लीना? उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते बैग में रखे थे। लीना उसकी इतनी जल्दी पैकिंग करने पर हैरान रह गई, जिसकी रंगत अभी कुछ देर कबल पाकिस्तान जाने के नाम पर उड़ गई थी, मगर अब वहीं जाने की तैयारी भी कर रही थी। मैम, एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी हाई लेवल फुटबॉल मैच प्रैक्टिस हेयर, सो आई गो देयर एवरी ईयर, सो इट्स अ बिट अर्ली. If you don't have any work, can I go? But I promise you that I will arrive on time tomorrow. मैम, वो दरअसल यहाँ ना बहुत आला पैमाने पे फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस होती है, तो मैं बस वहाँ हर साल जाती हूँ, इसलिए ज़रा जल्दी है। अगर आपको कोई काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मगर मेरा आपसे वादा है कि मैं कल वक्त पर पहुँच जाऊँगी। वो मुल्तजियाना लबो लहजे में बोली। प्रीसा ने ठटक कर उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर फुटबॉल के नाम पर एक लोही सी चमक थी। माजी के पन्ने उसकी निगाहों के सामने तेजी से गुजरे थे। ओके, यू कैन गो नाउ, वो नरमी से मुस्कुराकर बोली। लीना ने उसकी बात पर चमकती निगाहों से उसकी जानिब देखा और सरस से जाने के लिए मुड़ी थी। मान कुछ याद आने पर उसने एक बार फिर अपना रुख उसकी जानिब फेरा। मैम, यू आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैम, आपको समझना बेहद मुश्किल काम है, वो अजीब से लहजे में बोली। प्रीसा का अपने कपड़े बैग में रखता हाथ उसकी बात पर वहीं थमा था। अगले ही लम्हे वो दिलकशी से हंसी थी। डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई हैव सच अ डीप पर्सनैलिटी दैट यू विल ड्रॉन। मुझे समझने की कोशिश भी मत करना लीना, बहुत गहरी शख्सियत है मेरी, डूब जाएंगी आप। वो मुस्कुराते लहजे में बोली। लीना ने बामुश्किल मुस्कुराते उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे आप दिल से नहीं मुस्कुराती, क्योंकि जब आप मुस्कुराती हैं तो आपकी आंखें साथ नहीं देती। आंखों में खालीपन, लबों पे मुस्कुराहट, क्या इसे दिल से मुस्कुराना कहते हैं? उसने खोए खोए अंदाज में उसकी ज़ात पे तजिया किया था। प्रीसा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मेरे नज़दीक तो ये मुस्कुराना ही है, और मैं खुश हूँ कि मुझे ये मुस्कुराना भी नसीब हुआ है, वरना कुछ की किस्मत में सिर्फ रोना ही होता है, और इस रोने में ये खाली मुस्कुराहट भी किसी गनीमत से कम नहीं होती। वो धीमे लहजे में बोली। लीना का दिल उसकी बात पर धक से रह गया। मान उसे फ़ोन पर मसरूफ़ देख उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। परीसा ने हनूज मुस्कुराते अपना काम जारी रखा था। वैसे भी कल इस वक्त वो पाकिस्तान लैंड कर चुकी होगी, या हो सकता था कि वो घर भी पहुंच चुकी थी। 5 सालों बाद सब कैसा होगा? क्या सब बदल गया होगा? क्या वो दोस्ती वैसी ही होगी? वो महज सोचकर रह गई। बरीज़ा, बरीज़ा, वो जो किचन में खड़ी चाय बनाने में मसरूफ़ थी, नाजिया की आवाज़ पर चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। क्या हुआ मॉम, सब ठीक है ना? वो नासमझी से गोया हुई। तुम ये काम छोड़ो और कमरे में जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वक्त की पहले ही बहुत कमी है, और हादी को भी देखो, हाइज़म को भी तैयार करना है अभी, और जानती भी हो हादी देरी से अच्छा खासा चिढ़ता है। वो उसे झिड़कते हुए बोली तो उसने एक निगाह चाय पर डाली। इतनी चाह से उसने अपने लिए चाय बनाई थी। वो उस बाद में सर हिलाते मरियल कदमों से किचन से बाहर निकलती चली गई। बस कर जा, एक तेरी माँ रात को सोने नहीं देती और एक तू पूरा दिन रो रो कर गला फाड़ता रहता है। उसने जो ही कमरे के अंदर कदम रखा, अंदर से आने वाली हादी की आवाज़ पे वो बेचौताब खाती रह गई। क्यों, रात को कौन से जगराते करवाती हूँ मैं तुम्हें? मेरा मुंह मत खुलवाना। सारी रात मज्जों की तरह सोए रहते हो और सुबह भी तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती। पूरी रात मैं इसे अकेला संभालती हूँ। वो सर झटक कर गुस्सीले लहजे में बोली। उसकी बात ने तो उसे जैसे तप ही चढ़ा दी थी। तो कौन सा एहसान अजीम कर दिया है मुझ पे? अपना ही बच्चा संभाल रही हो। चलो अब आ ही गई हो तो इसे पकड़ो और मुझे सोने दो। वो तहक्कुम भरे लहजे में बोला। बरीज़ा ने उसके हुक्म देने वाले अंदाज पर दांत पीसते हुए उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे उसके बाल बरीज़ा की सख्त गिरफ्त में मुकैयद थे, जिसे वो सख्ती से खींच रही थी। क्या कर रही हो पागल औरत? वो झिंझलाते हुए बोला। औरत किसको बोला? लड़की हूँ मैं, लड़की। अंकल होगे तुम। वो दांत खिचखिचाते हुए बोली। हादी ने तकलीफ की शिद्दत से उसकी जानिब देखा।
ये पकड़ो इसे और संभाल कर दिखाओ। कौन सा एहसान कर रही हूँ मैं तुम पे? तुम भी कोई एहसान नहीं करोगे। वो तीखी मुस्कुराहट समेत बोली। हादी उसकी बात पे भौंचक्का रह गया। मेरी नींद नींद गई तेल लेने। तुम इसे पकड़ो और संभालो, फीडर बनाओ, पैम्पर बदलो, रोएगा तो संभालो। आज से सब तुम्हारे सुपुर्द। मैं तो चली तैयार होने। वो एक अदा से बाल झटकते हुए बोली और वार्डरोब में से प्रीसा का भेजा गया सूट निकालते वॉशरूम में घुस गई। उसने एक निगाह सूट पर डाली जो इंतहाई खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी इन सबको इन बॉक्सेस पे प्रीसा अफंदी की साइन देखकर हुई थी, जो कामयाबी की इतनी मंजिलें पार कर चुकी थी। मगर उनकी खुशी को ग्रहण प्रीसा के ना आने की खबर ने लगाया था, जिसने ऐन मौके पर वापस लौटने से इनकार कर दिया था। वो जी कड़ा कर रह गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो लिबास तब्दील करते जूं ही बाहर निकली, हादी पर निगाह पड़ते ही उसका कहकहा छूटते छूटते बचा। वो मुस्कुराहट छुपाते आईने के सामने आ खड़ी हुई। वहां से उभरते हादी के अक्स को देख वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराई, जो एक हाथ से उसे झिल्लाते दूसरे हाथ से उसका फीडर बनाने में मसरूफ था। चेहरे पे 12 बजे हुए थे। क्या हुआ हादी? चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वो आंखें पटपटाती मासूमियत भरे लहजे में बोली। हादी ने खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा ब्रीजा। वो गुस्से से बोलते मजीद जोर जोर से उसे चिल्लाने लगा। उसकी हरकत पर ब्रीजा की ममता तड़प उठी, मगर फिल वक्त वो कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि वो कुछ भी बोलकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी। तभी खामोशी से निगाहों का जाविया बदलते अपनी तैयारी में मसरूफ हो गई। अभी चंद पल ही बीते थे कि उसके रोने की आवाज उसने हैरत से रुख मोड़ते हादी की जानिब देखा, जो खूंखार निगाहों से हाइजम की जानिब देख रहा था। क्यों घूर रहे हैं इसे? ब्रीजा अपने लहजे में नागवारी समोए बोली। कल काम कर दिया है इसने मुझ पे, गीला हो गया हूं मैं। ये काम अपनी माँ के कपड़ों पर किया करो, मुझ पे नहीं। वो चिढ़कर बाकायदा रुहासा होता हुआ बोला। साथ ही ब्रीजा को घूरती निगाहों से देखा था। क्या है, क्यों घूर रहे हो? वो तुम निगाहों से उसकी जानिब देखते आईने के सामने रुक करते अपने गालों पर ब्लश ऑन लगाने लगी, जिसकी बदौलत उसकी गुलाबी गाल मजीद गुलाब हो गए थे। तुम्हें मेरे घूरने से या गुस्से से खौफ नहीं आता क्या ब्रीजा? वकार भी डर जाता है, मामा भी परेशान हो जाती हैं, एक तुम ही हो जिसे सिर्फ हंसी आती है। वह बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए बोला। ब्रीजा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। तुम्हारे गुस्से से डरने वाली, और वो भी मैं? ये हरबे कम अज कम तुम मुझ पर मत आजमाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर डर कम हंसी ज्यादा आती है। वो चिढ़ाने वाले लबो लहजे में बोलती उसे तिल मिलाने पर मजबूर कर गई। उसने खशमगी निगाहों से ब्रीजा की जानिब देखा और उसके नजदीक आते ही उसने हाइजम को उसके हाथों में थमाया था। एहसान मानते हो या नहीं? वो मजे से भौमें उचकाते हुए बोली। बहुत एहसान आपका, मेरी औलाद को दुनिया में लाकर उसे संभालने के लिए। कहो तो तुम्हारे पाँव छू लूं। वो चिढ़कर बोला और वार्डरोब से अपना 3 पीस निकालने के लिए अंदर सर घुसाया था। मरीजा ने शिकायती अंदाज में उसकी जानिब देखते हाइजम को लेते कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। नहाने बाद में जाना, पहले किचन में चाय रखी थी मैंने, वो ला कर दो। उसके तहक्कुम भरे लहजे पर हादी ने सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देखा। क्या कहा तुमने अभी? वो तनफन करते उसके सर पर पहुंचते बोला। अनहोनी बात तो नहीं की, बस चाय लाने का ही कहा है। इसमें इतना सदमे में जाने की क्या बात है? जाओ अब, वैसे भी सर दर्द से फट रहा है मेरा। वो अपना सर दबाते हुए बोली। हादी के चेहरे पर फौरन तफक्कुर भरे तासुरात उभरे थे। वो सरस से उसके नजदीक बैठा और थोड़ी की मदद से उसका चेहरा थामते ऊंचा किया। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम जाना कैंसिल कर देते हैं। उसके लहजे में फिक्र और मोहब्बत महसूस कर वो दिलकशी से मुस्कुराई थी। जानती थी वो जितना मर्जी लड़ झगड़ लें, मगर इन सब के आगे जीत हमेशा मोहब्बत की ही होती थी। नहीं, तुम बस चाय ला दो, वो मुस्कुराते लहजे में बोली। पहले प्यार से कहो, फिर हम जाएंगे। उसने शाने उचकाकर ढिठाई से बोलते साथ ही अपना गाल उसके आगे किया था। ब्रीजा ने तासुफ से उसकी जानिब देखा और हंसते हुए उसके गाल पर धीमे से अपना लम्स छोड़ा था। अभी आया। वो उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ते तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ा था। ब्रीजा उसकी चौड़ी पुश्त को देखते तमानियत से मुस्कुरा दी थी। मान वक्त का ख्याल करते ही वो हाइजम की जानिब मुतवज्जा हुई थी। तुम तैयार नहीं हुए अब तक? वो जो ही कमरे में दाखिल हुई वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा फोन में मसरूफ था। चौंक कर सीधा हुआ। नहीं, वो शाने उचकाकर बोलते दोबारा से कानों में हेडफोन्स लगा गया। अनाब ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्यों नहीं हुए? वो नासमझी से गोया हुई। पहले तुम तैयार हो ताकि मैं तुम्हारी तैयारी देख लूं। अगर मेरा ईमान डगमगाए तो मुझे अपनी तैयारी ज़ाया होने का कोई अफसोस ना हो। वो शाने उचकाते बेनियाजी से गोया हुआ। क्या मतलब? वो बेड पर पड़ा कंफर्टर समेटती मसरूफ से अंदाज में बोली। मैं लफाजी से खेलने का आदी नहीं हूँ, अमली मुजाहिरा करूंगा। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट समेत बोला। अनाब ने हैरत से उसकी जानिब देखा, मगर शऊर की मंजिल तय करते ही वो सरस से कान की लौं तक सुर्ख पड़ गई। उसने खींचकर कुशन उसके मुंह पर मारा था। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो इर्तिजा चौधरी, वो दांत पीसते हुए बोली। इर्तिजा ने एक जस्मे अपनी जगह से खड़े होते उसकी कलाई अपने शिकंजे में ली थी। अपने अल्फाज वापस लो अनाब इर्तिजा, उसने सख्ती से उसे तंबीह की थी। अनाब ने आंखें छोटी करते बगौर उसकी आंखों में देखा। नहीं लूंगी, क्या करोगे? वो दोनों हाथ सीने पर बांधती एक अदा से बोली।
ارتضا کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے اس کے بازو پر غریب مزید سخت کی۔ کس قسم کی بیوی ہو تم؟ تمہارا شوہر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لو اور تم اس کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے اناب۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے جتانے والے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اوہ 2 منٹ! اور اگر اس 2 منٹ میں یہ کام تو پھر وہ اس کے مزید نزدیک ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح چیلنج تھا۔ تو پھر تم خود ہی بتا دو کہ تمہیں مزید کتنا وقت درکار ہے اپنے الفاظ واپس لینے میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں چیلنج بھانپتے مسکینیت سے بولتے اناب کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ ارتضا نے مسکراتی نگاہوں سے اسے نہارا تھا۔ اس کی ہنسی میں ہی تو اس کی جان بستی تھی۔ اس نے جھکتے نرمی سے اس کے دونوں گالوں کو چھوا تھا۔ اناب اس کی پیش رفت پر خجل ہوتے اسے فاصلہ قائم کر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رخ بدلتے وارڈروب کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ چلو اب بس کرو اور تیار ہو جاؤ، وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ ارتضا نے اس کی بات پر عمل کرتے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تو وہ بھی اپنا سوٹ لیتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ چند ساعتوں بعد وہ باہر نکلی تو ارتضا کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے شانے اچکاتے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب جگہ سنبھالی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ ہلکا پھلکا سا تیار تھی۔ اپنی تیاری پر تفصیلی نظر ثانی کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، کمرے کے دروازے پہ کھٹکے کی آواز پر اس نے چونک کر جوں ہی دروازے کی جانب دیکھا، فون میں مصروف اندر آتے ارتضا کی نگاہیں اسے دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ اس نے بے خودی کی کیفیت میں سرتاپا اس کا جائزہ لیا۔ آنکھوں میں جیسے جگنو سے جلنے لگے تھے۔ اس کی والہانہ نگاہ خود پر محسوس کرتے اناب نے دل ہی دل میں حلق تر کیا مگر بظاہر مضبوط رہی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ اپنے سراپے کی جانب اٹھی تو اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے کیونکہ دوپٹہ سرے سے نادارد تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سرسری سا بناتے ہوئے پوچھا اور عجلت میں دوپٹہ اٹھاتے خود پر لپیٹا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں دیکھ کر کل والے لڑکیوں کی باتیں یاد آ گئیں تو ذہن خود بخود اس جانب مبذول ہو گیا۔ ویسے کل وہ لڑکیاں کیا کہہ رہی تھیں مجھے کہ آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، بیوی کہاں سے اٹھا لائے ہیں آپ؟ دونوں کا تو بالکل جوڑ نہیں ہے۔ وہ اسے چڑھانے والے لہجے میں بولا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ چڑ بھی گئی۔ اپنی بیوی کے متعلق اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، جب تک لڑکیاں محبت رہے وہ دنیا کی حسین و جمیل دوشیزہ ہوں گی، مگر جو ہی اس کی شادی آپ سے ہو جائے تو ساری اس تو لیکن جو ہی اس کی شادی آپ سے ہو جائے تو اس پر چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ وہ طنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ 100% درست کہا تم نے، وہ برش سے بالوں کو سنوارتے مصروف سے لہجے میں بولا تھا۔ ارتضا اب مزید بحث مت کرنا مجھ سے کیونکہ تمہارا جو یہ حسن ہے نا یہ مجھے میری بات بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ نہ ہی یہ کوئی اتنی بڑی دلیل ہے، ہار جاؤ گی اناب بیگم، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرنے والے انداز میں تمسکرانہ لہجے میں بولا۔ اناب کے وجود میں اس کے لمس سے سنسناہٹ سی دوڑ گئی، مان وہ ایک لمحے میں سیدھی ہوئی تھی۔ آنکھیں یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں وہ خود کے لیے ستائی صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ارتضا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا جس نے ایک جھٹکے سے اپنے بالوں کو کیچر کی گریف سے آزاد کرایا اور ایک دم چہرہ نیچے جھکاتے بالوں کو دائیں جانب جھٹکا تھا۔ اس کی گھنی زلفوں کی حرکت کے ساتھ ہی اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ارتضا سانس روکے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی، البتہ آنکھوں میں جیت کی چمک۔ مگر ارتضا اب اپنے حواسوں میں ہی کہاں رہا تھا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اناب اس کے سامنے ایسی حرکت کرے گی۔ ہاں کچھ کہہ رہے تھے کیا تم؟ وہ اپنے لبوں کو گلابی لپسٹک سے رنگتے مصنوعی چونکتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، وہ جو کھویا کھویا اس کی جانب دیکھ رہا تھا اپنی بے ساختہ حرکت پر خجل ہوتے آئینے کی جانب رک کر گیا۔ اناب نے ڈریسنگ سے پشت ٹکاتے اس کے کوٹ کے بٹن کو بند کیا تھا۔ ارتضا شاید ابھی بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ہاں جو حسن ہوتا ہے نا ارتضا، یہ مردوں کو ایک سیکنڈ میں پگھلا دیتا ہے، اس لیے اگلی بار دلیلوں کی بات مت کرنا۔ وہ گہری مسکراہٹ سمیت بولتی دل ہی دل میں اس کی حالت پر قہقہا لگا کر ہنس دی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے آگے بڑھتی اپنی کلائی اس کے شکنجے میں محسوس کرتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنا تو میرا حق ہے نا، وہ اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے گمبھیر لہجے میں بولا اور اس کے کان میں جھومتے جھمکے کو انگلی کے پور سے چھوا تھا۔ اناب کی حالت اس کی حرکت پر غیر ہونے لگی۔ اگر ہم وقت پر زیمل کی برتھ ڈے پر نہ پہنچے تو سب کی موجودگی میں صدام بھائی کی جوتی آپ کو سلامی پیش کر جائے گی، وہ گھبرائے لہجے میں بولتی سرے سے ہی اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر گئی۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہزار ڈھیلے ہوتے ہی بھاگنے والے انداز میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ارتضا اس کی چالاکی بے بسی اور بے کسی سے ہاتھ کی مٹھی بناتے دوسرے ہاتھ میں مار گیا، مگر پھر اس کی حرکت یاد کرتے اس کے لبوں کے گوشے پہ اس کے لبوں کے گوشوں پہ ایک دلکش معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آفندی ہاؤس میں آج الگ ہی سما تھا۔ گھر کے ایک مخصوص حصے کو خوبصورتی سے بچوں کی مناسبت کے لحاظ سے تیار کروایا گیا تھا۔ سالگرہ کا اہتمام لاؤنج میں ہی کیا گیا تھا۔ چاروں اطراف میں گلابی اور سفید رنگ کے غبارے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔
ऐन वस्त में एक ऊंचा मेज रखा गया था जिसके अतराफ में भी गुब्बारे और लड़ियां लगाई गई थीं। सालगिरह में दोस्त वगैरह ही मौजूद थे, तभी ये तकरीब घर में ही करने को तरजीह दी गई थी। इस सूरत हाल में अफीफा जेमल के पीछे बुलाई बुलाई फिर रही थी, जो इसे एहतमाम को देख फूले नहीं समा रही थी। जेमल, स्टॉप इट! अफीफा थक हार कर गुस्से से बोली तो उसने मुंह बसोरते उसकी जानिब देखा। मामा, पुप्पो आ रही है ना? अफीफा उसे फराक पहनाने में मसरूफ थी कि उसकी बात पर साकित रह गई और चौंक कर कमरे के अंदर आते सद्दाम की जानिब देखा। बेटा, पुप्पो फिर आएंगी। दरअसल उन्हें वहाँ कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, तभी वो लेट हो गई हैं। हम उन्हें वीडियो कॉल मिलाएंगे ना? वो उसका गाल थपथपाते हुए बोली तो उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। उसने नाराज़गी से उसकी जानिब देखा और मुंह फुला गई। मगर फुप्पो ने कहा था कि वो आएगी। वो दोनों जानते थे कि उसका मूड अब खराब हो चुका था, तभी गहरा सांस भरकर रह गए। अफीफा ने उसकी तैयारी मुकम्मल की। जेमल, आपके फ्रेंड्स आ गए हैं और हाइज़म भी आ गया है, जल्दी से जाएं। सद्दाम अकब से ही उसे बाहों में भरते उसकी पेशानी चूमते हुए बोला तो वो भी बच्चों की तरह वो बात भुलाते चमकती आंखों समेत भागने वाले अंदाज में वहां से निकली थी। उसके जाते ही सद्दाम ने अपना रुख दोबारा अफीफा की जानिब किया। परी को यूं नहीं करना चाहिए था। अभी बाबा से भी मेरी अच्छी खासी बहस हुई है, वो बहुत नाराज हैं। परीसा कम अज कम उनकी नाराजगी का तो ख्याल करे जिसकी बदौलत वो आज इस मुकाम पर है। सद्दाम अपनी पेशानी मसलते तासुब ज़दा लहजे में बोला तो वह उस बात में सर हिला गई। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद ही मुलाजमा ने उन्हें आफिया का पैगाम दिया तो वो दोनों भी हल्की फुल्की तैयारी करते नीचे आ गए थे। सद्दाम ने एक निगाह अफीफा की जानिब डाली जो कुछ उदास उदास सी दिख रही थी। ये देखो जरा, जेमल को कैसे परी की तरह बोलती है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक बेटी हुई है, अभी परी पे चली गई और अब जो दूसरा मुन्ना आएगा ना, वो खुसूसन मुझ पर जाना चाहिए। इस पूरे दौरानिये में मैंने तुम्हें खुद से बांध लिया है। वो उसके शाने के गिर्द बाजू हमाइल करते मायनी खेज लहजे में बोला तो अफीफा ने दांत खिचखिचाकर उसकी जानिब देखा। वाह वाह, तालियां बजाओ इन अजीम हस्तियों के लिए। एक मुझ जैसा मजलूम इंसान जिसकी शादी तो दूर की बात, थोड़ी सी मंगनी भी नहीं हुई, और यहाँ मुन्ना लाने की बात हो रही है। फारिस उन दोनों के अकब से ही झांकते तिल मिलाते हुए बोला। उसका दुख एक बार फिर से ताज़ा हो गया। जेमल जो बॉल से खेलने में मुहफ थी, फारिस की बात पर मुड़ते भागते हुए उसकी जानिब आई। चाचू! उसने हाँफते हुए उसे पुकारा और अपने दोनों बाहें उसकी जानिब फैलाई थीं। फारिस ने सरस से उसे गोद में भरते उसका सर चूमा। आपको पता है, कल भी बाबा मुन्ना मुन्ना कर रहे थे। इससे कबल कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, सद्दाम ने सरस से उसके मुंह पर हाथ रखते मीसनी सी सूरत बनाते अफीफा की जानिब देखा, जो चेहरा झुकाए मुस्कुराहट दबाने में मसरूफ थी। उसकी हरकत पर उन सबका कहकहा बेसाख्ता था। कोई शर्म, कोई लिहाज सद्दाम मियाँ! इब्तिदा तंजिया निगाहों से उसे देखते झाड़ पिलाने वाले अंदाज में बोला। चाचू, यम यम नहीं आई। वो फारिस का मुंह अपनी जानिब करती मुंह बसोरते हुए बोली तो फारिस ने चौंक कर उसकी तलाश में निगाहें घुमाई थीं। मान दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते वजूद को देख उसकी आंखें मुस्कुराई थीं, मगर अगले ही लम्हे उसके बालों पर निगाह पड़ती उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अजलत में जेमल को नीचे उतारा। उस दौरान वो भी नजदीक आ चुकी थी और मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। इसके बरक्स फारिस की चुपती निगाहें उसके कमर तक आते बालों पर जमी थीं, जो शायद वो कटवाने का फरीजा सर अंजाम दे चुकी थी। यम यम, तुम्हारे बाल कहाँ गए? वो सरसराते लहजे में बोला। इससे पहले कि वो इसके बालों को छूकर चेक करता, मरियम ने तेज निगाह उस पर डाली थी। कटवा लिए मैंने, संभाले नहीं जाते थे, और वैसे भी मैंने सुना था कि कोई मेरी जुल्फों का आशिक है। अभी एक था, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाते तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो एक अदा से बालों को झटकते हुए बोली। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? बालों के साथ शक्ल का होना भी जरूरी है। अगर कोई बालों पर फिदा है तो वो बहुत बड़े जिगरे समेत तुम्हारी सूरत को भी अपना रहा है। ये सोचकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, वरना तुम्हारी सूरत कहाँ। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। मरियम ने सख्ती से मुठ्ठियां भींची थी। सामने खड़े जलील शख्स की हरकत से वो अच्छा खासा आजीज आ चुकी थी। अगले ही लम्हे फारिस ने उसके बालों को छू कर चेक किया तो वो नीचे से अच्छे खासे फोल्ड करते उसे आधा किया गया था। तो शक्र भरा सांस खारिज करके रह गया। बहुत अच्छी बात है तुमने नहीं कटवाए, और आइंदा कटवाना भी मत, वरना तुम्हारी खूबसूरती मर जाएगी, और अगर खूबसूरती मर गई तो तुम भी कुमारी मर जाओगी। वो उसे मशवरा देते हुए संजीदगी से बोला। बाकी सब हौंकज़दा उसकी जानिब देख रहे थे, जो अब बालों में हाथ फेरते सोफे पर जाकर बैठ गया। सद्दाम, मेरे ख्याल में हमें केक काट लेना चाहिए। आफिया ने उसके बाजू पर हाथ रखते नरमी से उसे मुखातिब किया तो उसने एक निगाह किसी उम्मीद के तहत दरवाजे की सिमत डाली थी। जी मामा, बाबा नहीं आए? उसने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। वो आ जाते हैं सद्दाम, न जाने कौन सा गुनाह कर दिया है हमने उसे बाहर भेजकर। अब तुम भी मत जाना उनके पास, वो पहले ही बेजार हैं। बात मजीद ना बढ़ाई जाए, तुम काम शुरू करो। वो नजरें चुराते हुए नरमी से उसे कायल करते वहां से मुड़ी थी। सद्दाम ने एक थकी थकी सी सांस खारिज की थी। अगले ही लम्हे बेध्यानी में उसकी निगाह दरवाजे की जानिब उठी तो वहीं उठी रह गई। उसकी आंखों में बेयकीनी का आंसर साफ था, लबों पे धीमी मुस्कान, आंखों में नमी और बेयकीनियत सी थी। शहराम, उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली तो अगले ही लम्हे सबने झटके से रुख मोड़ते दरवाजे पर एस्तादा छोड़े वजूद को देखा था, लेकिन उससे ज्यादा हैरत उन सबको उसका हाथ थामे बच्चे को देखकर हुई थी। वो हूबहू उसके जैसा था।
नैन नक्श, रंगत, चेहरे में इस कदर मुशाबहत थी। सद्दाम तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा और उसे अपने सीने में भेजा था। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम आओगे। मुझे भी नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में कभी। वो उसकी बात के जवाब में संजीदगी से बोला, शहराम, सर तो इन 5 सालों में मजीद जवान हो गए हैं, और अगर ये साथ उनका बेटा है तो हमें तो शर्म से ही डूब मरना चाहिए। मरियम रीज़ा के कान में झुकते सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली, क्यों शर्म करनी चाहिए पागल इंसान? इसमें भी एक अलग मज़ा है, क्योंकि लेजेंड सबसे आखिर में जन्म लेते हैं। और तुम देखना, मेरा बेटा सबसे आखिर में आएगा और तबाही मचाएगा। वो फखरिया कॉलर झाड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे बेटे से मेरा क्या ताल्लुक? शर्म तो मुझे आनी चाहिए। वो उसकी फजूल बातों पर सर झटकते हुए बोली, कैसी अकल की अंधी दोस्त है तुम्हारी? भला इसकी और मेरी औलाद अलग होगी क्या? वो मरियम के सर पर चपत लगाते उसकी अकल पर मातम करते शहराम की जानिब बढ़ गया, जबकि मरियम उसकी बेहुदा बकवास पे आग बगोला होती मुठियां भेज गई। वो सब फारिस की बात का मफहूम समझते खुलकर हंस दी थी। अब वो सिर्फ सब शहराम से मिलने में मसरूफ थी। शहराम का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था, सर्द, संजीदा सा। गाज शहराम की तंबी आवाज़ पर उसने धीमे लहजे में सबको सलाम किया था। यार, अ, अगर दुनिया में किसी को लाना ही था तो कोई ढंग की चीज़ लाते। तुमने अपने आप की ही कॉपी करके इसकी सूरत में पेश कर दिया है। फारिस गाजान का मुआयना करते हुए बोला, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। आंखों में अलग ही गुस्सा चमक रहा था। वो सब बारी बारी उसके सीने से लगे थे। उनमें से किसी ने भी उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उसकी बदौलत गुजरे सालों में यहाँ क्या क्या हो चुका है। जी जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम अरेंजमेंट का, बहुत खूबसूरत हैं। ओके, अब आपसे पर्सनली मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सद्दाम, वो आशिर जो किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ हंसते हुए अंदर आया था, फ़ोन काटते बेदहानी में उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, मगर वहाँ खड़े अनजान चेहरे को देख उसने चेहरे पर नाकाबिल फ़हम तासुरात से जाते उसकी जानिब देखा। उन सबके चेहरों का रंग एक लम्हे को उड़ा था। आशिर, ये शहराम है, मेरा दोस्त। उसकी बात थी या कोई पिघला हुआ शीशा जो किसी ने आशिर की समातों में उतार दिया था? उसने खाली खाली निगाहों से उसकी जानिब देखा। जो स्याह शलवार कमीज पे स्याह ही चादर ओढ़े आज भी उतना ही शानदार था, तो फिर 5 साल पहले वो कैसा होगा? और परीसा ऐसे ही तो उसकी दीवानी नहीं हुई थी। इर्तिजा के शाने हिलाने पर वो होश की दुनिया में लौटा और बामुश्किल मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। हेलो, माई सेल्फ आशिर, वो धीमे शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। शहराम ने सर हिलाते उसका हाथ थामा था। आशिर के दिल की धड़कन रुक रुक कर चल रही थी। उम्मीद की एक डोर थी जो उसे अपने हाथ से निकलती हुई महसूस हुई थी। सदाम उसकी हालत बखूबी समझ रहा था, तभी उसे लेते आगे की जानिब बढ़ा था, जहां आफिया जेमल के साथ मसरूफ थी। साथ ही बैठे आदिल को देख उसने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया था। वो दोनों जो जेमल की किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे, सामने खड़ी शख्सियत को देख साकित रह गए। क्या क्या नहीं घूमा था आंखों के सामने। प्रीसा का मुरझाया चेहरा, उसकी आहें, उसकी सिसकियां, उसकी तड़प, उसकी खाली खाली निगाहें। अस्सलाम वालेकुम। उसकी बारोब आवाज़ जो ही लाउंज की फिजा में गूंजी, आदिल ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते उसका शाना थपथपाया था। कैसे हो बरखुरदार? वो हशाश बशाश लहजे में बोले, क्योंकि उनके नज़दीक जो भी हुआ उसमें शहराम की कोई भी कोताही नहीं थी। मान उनकी निगाह गाजान की जानिब उठी, जो हैरत से इतराफ का जायजा लेने में मसरूफ था। ये आपका बेटा? आफिया की बात पर शहराम ने गाजान के बाल से हिलाते हुए इस बात में सर हिलाया था। गाजान ने मुस्कुराकर उन दोनों की जानिब देखा। आप तो बिल्कुल दादू जैसे हैं। ये पहली बात थी जो इसने इंतहाई जोर से बोली थी। आदिल ने जवाब में मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। जिंदगी में इतना आगे बढ़ गए तुम शहराम। इर्तिजा की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। जिंदगी रुकी ही नहीं, बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, मगर चलती गई, और मुझे भी अपने साथ इतनी दूर ले गई कि चलते चलते अब पाँव भी शल हो गए हैं। वो खोए खोए लहजे में बोला और एक निगाह दूर खड़े गाजान पर भी डाली थी, जो बच्चों के दरमियान कितनी जल्दी घुल मिल चुका था। इर्तिजा ने गहरा सांस भरते उसकी जानिब देखा था, जिसका लहजा टूटा बिखरा सा था। न जाने वो खुद कौन सी अजियत का शिकार होगा, वो महज सोच कर रह गया। शहराम ने एक तायराना निगाह पूरे घर में दौड़ाई, जहाँ सब कुछ वैसा ही था, बस नहीं था तो वो वजूद जिसकी दुनिया वो जाते जाते उजाड़ गया था। क्या उसकी शादी हो चुकी थी? मगर उसकी शादी भी हो गई होती तो फिर भी वहाँ ज़रूर आती। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था, मगर जवाब एक भी बात का नहीं था उसके पास। क्या ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बीत जाती है? अपने वतन की सरजमीन पे कदम रखते ही एक तमानियत भरा एहसास उसके रगों पे में सरायत करता चला गया। उसने आंखें मूंदते उस फिजा को गहरा सांस भरते अंदर उतारा था। एजेंसी से गाड़ी का वो पहले ही बोल चुकी थी, तभी वो उसके इंतजार में थी। अतराफ में गुजरते लोग सरतापा हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे, जो ब्लैक जीन्स पर लॉन्ग कोट पहने, आंखों में स्याह गॉगल्स लगाए, बार बार अपनी घड़ी की जानिब देख रही थी। कुछ सातों बाद ही स्याह रंग की मर्सिडीज उसके कदमों से कुछ दूरी पर रुकी थी। फरीसा ने दिलकशी से मुस्कुराते उसका जायजा लिया था और उसमें से निकलते आदमी से गाड़ी की चाबियां लेते उसे उसका सामान डिक्की में रखने का हुक्म सादिर किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली।
भाई मत करे ना, आप ऐसे ही पोनी खींचते हैं मेरी। वो जो इग्निशन में चाबी घुमाने में मसरूफ थी चौंक कर विंड स्क्रीन के पार देखा जहां एक लड़की अपने भाई को घूर रही थी जो जवाब में उसे चिढ़ा रहा था। बाबा ये देख ले भाई को। वो शायद अपने बाप की आगोश में छुप रही थी, पर ईसा ने अजियत से आंखें मूंदते सीट से पुश टिकाई थी। लबों पे एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अपने खूनी रिश्तों से दूर हूँ। वो आंखों में तड़प लिए तलक लहजे में बड़बड़ाई। अगले ही लम्हे उसने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया और गाड़ी एक झटके से धूल उड़ाती एयरपोर्ट की हदूद पार करती चली गई। भाई मैं अकेली ड्राइवर, यहाँ की सड़कें देखी हैं आपने? तौबा! अपनी कही हुई बात उसकी समातों में गूंजी थी। आज क्या था? आज वो इन्हीं सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रही थी। जहन मुसलसल इन सब में उलझा हुआ था। ना जाने इतने अरसे बाद वो उसे देखकर कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। गाड़ी मुसलसल सड़क पर दौड़ रही थी। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद गाड़ी इन्हीं सड़कों पर दौड़ रही थी जहां उसने जिंदगी गुजारी थी। उसने गाड़ी एक झटके से रोकते हसरत भरी निगाहों से अतराफ का जायजा लिया और सर स्टेयरिंग से टिका दिया। चेहरा अलबत्ता बिल्कुल सर्द था। गाड़ी दोबारा उसने घर की जानिब बढ़ाई थी। अगले 5 मिनट में गाड़ी एक झटके से उस इमारत के बाहर रुकी थी जो कहने को उसका घर था, मगर वो अपनी मर्जी से उस घर से दूर थी। अंदर से मध्यम मध्यम मौसीकी की आवाज उसकी समातों में उतर रही थी। उसने गाड़ी से बाहर निकलते दोनों हाथ अपने पुष्ट पर बांधे थे। चौकीदार जो हैरत भरी निगाहों से इतनी बड़ी गाड़ी को यहाँ रुकता देख रहा था, बाहर निकलती शख्सियत को देख उसकी आंखों में नमी दर आई। मुझे प्रीसा बीबी मत कहा करें, यहाँ बिटिया बेहतर है, अच्छा भी लगता है। उसकी समातों में प्रीसा की खनकती हुई आवाज गूंजी थी। शायद अभी उसने उनकी जानिब नहीं देखा था। खुद पे किसी की निगाहों का इर्तिकाज महसूस करते उसने चौंक कर दाएं जानिब देखा जहां रहीम बाबा बैठे आंखों में नमी लिए उसी की जानिब देख रहे थे। परी बिटिया, उन्होंने नम लहजे में उसे पुकारा। प्रीसा ने उनकी अपनाइयत पर होले से उनके आगे सर झुकाया था तो उन्होंने अपना कपकपाता हाथ उसके सर पर जमा दिया। परीसा ने सख्ती से आंखों को खींचा था। अगले ही लम्हे उसने अपने बाएं हाथ में मौजूद मास्क अपने चेहरे पर पहना और उसे ढांपा था जिससे उसका पूरा वजूद ढक गया था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी जिस पर उसने गॉगल्स पहन रखे थे। उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। दिल की धड़कन मामूल से हटकर चल रही थी। हील की मखसूस टिक टिक की आवाज पूरे अतराफ में गूंज रही थी। उसने दोनों हाथों से बालों को संवारते उन्हें पीछे झटका और दाखिली दरवाजे के ऐन सामने रुकते दोनों हाथ अपनी जेब में अटसे और एक खुशगवार निगाह पूरे लाउंज में दौड़ाई थी जहां पर एक अलग ही समा था। वहां वो सब चेहरे थे जिसे देखने को वो तरसी थी। उसने धड़कते दिल समेत कदम जीनों से नीचे उतारते धीमे से कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे। सबसे पहले फारिस की निगाह उसकी जानिब उठी थी, मगर उसका लिबास देख कोई भी उसे पहचानने से कासिर थे। फारिस ने सर से इर्तिजा के बाजू में चुटकी भरते उसकी तवज्जो भी उसकी जानिब मबजूल करवाई थी। इस तरह बारी बारी सभी उसकी जानिब मबजूल हो चुके थे। शहराम की पेशानी पर शिकरों का जाल बिछा था। प्रीसा ने ऐन वक्त में पहुंचते एक झटके से अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते एक तायराना निगाह उन सबके उड़े उड़े हवासों पर डाली थी। उन सबसे होते उसकी निगाह फारिस की जानिब उठी जो बार बार पलकें झपक रहा था। फारिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे देखकर उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। अगले ही लम्हे उसकी दोनों दो उंगलियों से बंदूक की नाल बनाते फारिस की जानिब दोनों उंगलियां करते गोली चलाई थी। फारिस उसकी हरकत पर मसनूई ढह जाने वाले अंदाज में इर्तिजा पर गिरा तो वो पूरे लाउंज में उसकी खिलखिलाहट गूंजी थी। मरियम ने तिल मिलाकर उसकी सस्ती अदाकारी देखी थी। उन सब ने बैक वक्त झटके से उसकी जानिब देखा था। दिल अनोखे परले पर धड़का था। अगले ही लम्हे वो उछलते कूदते बच्चों की जानिब बढ़ी और ऐन जीमल के अकब में घुटनों के बल बैठी थी। जीमल खेलते खेलते हंसते हुए पीछे मुड़ी थी। अपने अकब में किसी को देख उसने आंखों को छोटा करते उसकी जानिब देखा। बाबा! उसकी पुकार पर सदाम सरस से उसकी जानिब बढ़ा। इस पूरे अरसे में जेमल को देख उसकी आंखें भीगी थीं। वो सच में उसकी कॉपी थी। वो आंखों में नमी लिए हंसी थी। सबकी मुंतजिर निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं। अगले ही लम्हे उसने अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए होले से अपने चेहरे से मास्क उतारा था। सबकी धड़कनें वहीं थम गईं। वो सब फटी फटी निगाहों से बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देख रहे थे जो अब सख्ती से जेमल को सीने में भेजते आंखें मूंद चुकी थी। मेरी परी! आदिल की आवाज पर परी ने भीगी निगाहें उठाते उनकी जानिब देखा था। फुफ्फो आप आ गईं, वो चहक कर बोली। प्रीसा ने नरमी से उसके दोनों गालों पर बोसा दिया था। फुफ्फो ने अपनी प्रिंसेस से वादा किया था, भला वो कैसे ना आती। वो हंसते हुए बोली और सद्दाम की जानिब देखा जो शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। प्रीसा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा तो सद्दाम ने उसे अपने सीने में भेज लिया। प्रीसा ने नरमी से उसे खुद से अलहदा किया और कदम आदिल की जानिब बढ़ाए थे। अगले ही लम्हे उन्होंने लरसते हाथों से उसकी जानिब बाहें वाह की थी। प्रीसा सरत से उसमें आ समाई। डैड! वो भीगे लहजे में बोली। उसकी पुकार पे बच्चों के झुरमुट में खड़े खाजान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, मगर लोग होने की बदौलत वो उसका चेहरा देखने से कासिर था। उनसे अलग होते उसने नरमी से आफिया की आंखों को पहुंचा था और मुस्कुराते हुए उनकी पेशानी पर बोसा दिया। इससे ज्यादा देखना शहराम के लिए इंतहाई कठिन था। तभी लंबे लंबे ढक भरता एक जानिब हो गया। फरीसा ने उन सबसे फरागत हासिल करते उन सबकी जानिब देखा जो हैरत से सरतापा उसका जायजा ले रहे थे। अगले ही लम्हे उसने अपनी कमर पर हाथ रखते सर को खम किया था। जवाब में उन सब ने भी यही अमल दोहराया था। उसने हाथ की मुट्ठी बनाते बारी बारी उनके हाथों पर अपने मखसूस अंदाज में मारी थी। परी, तुम मुझे पहले क्यों ना मिली? फारिस दुहाई देने वाले अंदाज में बोला।
जिंदगी गुजर जाएगी मगर तुम्हारा ठरकपन नहीं जाएगा, वो दांत पीसते हुए बोली और आगे बढ़ते हादी के हाथों से हाइजम को लिया था। तुम्हें रोना नहीं आ रहा परी? अफीफा बगौर उसकी जानिब देखते भीगे लहजे में बोली। इतनी मुश्किलों से तो हंसना सीखा है, वो बगैर चौंके बोली। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम सब, वो सबको सताइशी निगाहों से तकते मोहब्बत से पुर लहजे में बोली और अगले ही लम्हे वो चारों उसके सीने से लगी थी। परीसा ने नरमी से उन सबको अपने बाजू के घेरे में लिया था। वहां से होते हुए उसकी निगाह आशिर की जानिब उठी। कैसे हो? वो उसके नजदीक जाते हंसते हुए बोली। आशिर ने जवाब में मुस्कुराते हुए शाने उचकाए थे। परीसा खुलकर हंस दी थी और बालों को संवारते उससे माजरत करते दोबारा कदम जेमल की जानिब बढ़ाए थे। फूफो, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सब बच्चों की जानिब इशारा करते हुए बोली। परीसा ने बारी बारी उन सबसे हाथ मिलाया था। वो सब उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे ना जाने वो कितनी बड़ी शख्सियत हो। महान उसकी निगाह बाएं जानिब खड़े बच्चे पर पड़ी तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाने क्यों सिमटी थी। अगले ही लम्हे वो अपनी सोच पर सर झटक गई। वो आपका फ्रेंड नहीं है। प्रीसा दूर खड़े खाजान की जानिब इशारा करने लगी तो वो नाक मुंह चढ़ा गई। आफिया ने सख्ती से आदिल का हाथ थाम लिया। उन सबकी आंखों में हौसला जागा था। वो तो संभली थी, अगर वो फिर से बिखर गई तो। तुम्हें आज शहराम को नहीं बुलाना चाहिए था सद्दाम, आदिल घबराए हुए लहजे में बोले। बाबा, मुझे अंदाजा नहीं था कि परी अचानक। वो अपनी पेशानी मसलते हुए बोला। अफीफा ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। अफीफा, रुको, जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखने दो कि वो शहराम को देखकर रद्द-ए-अमल कैसे जाहिर करती है। सब नॉर्मल रहो बस। हादी संजीदगी से गोया हुआ तो उन सबकी जात कहीं ना कहीं ढीली पड़ी थी। प्रीसा ने अपनी जगह से उठते गाजान की जानिब कदम बढ़ाए थे। हेलो, उसने नरमी से मुस्कुराते उसकी जानिब अपना हाथ फैलाया था। गजान ने कुछ लम्हे उसकी जानिब देखा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। प्रीसा ने उसे लेते कदम जेमल की जानिब बढ़ाए। चलो अब बताओ, दोस्त क्यों नहीं बनाया इसे? इतना कूल दोस्त मिल जाएगा जेमल को। क्यों? ओ एनीवेज इट्स ओ एनीवेज व्हाट्स योर नेम? वो मुस्कुराते लहजे में बोली। गजान ने बगौर उसकी जानिब देखा। गाजान खान। उसकी बात पर प्रीसा का दिल धक से रह गया। उसने हैरत से उसकी जानिब देखा जो अब अपना नाम बताकर हंस रहा था। उसने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया था। फुफ्फो, ये गंदा है, गुस्सा करता है। अगर तुम मुझे गंदा कहोगी तो मैं फिर से गुस्सा करूंगा। वो पेशानी पर शिकने से जाए बोला। ओ, इतना गुस्सा एंग्री बर्ड? गुस्से में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी की जात को तकलीफ पहुंचे बेबी। वो उसकी नाक दबाते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। अफीफा ने सद्दाम को देख नफी में सर हिलाया, क्योंकि अभी तक परीसा उसकी पहचान से अनजान थी। गजान उसकी बात पर मुस्कुराकर सर हिला गया। नोटेड, वेल, आप बहुत अच्छी हैं, वो धीमे लहजे में बोला। परीसा ने हंसकर उसकी जानिब देखा। वैसे लगते तो पठान हो, उर्दू किसने सिखाई, वो भी इतनी अच्छी? वो अब उससे बातें कर रही थी। मेरे डैड ने, वो संजीदगी से बोला तो प्रीसा ने सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखा। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे आपके डैड हैं कहाँ? वो नासमझी से गोया हुई और इशारों में ही फारिस से उसके फादर के मुतालिक पूछा, मगर इससे पहले ही गाजान सख्ती से उसका हाथ थाम चुका था। मैं आपको अपने डैड से मिलाता हूँ। वो आंखों में जुगनू लिए बोला तो प्रीसा चाहकर भी इनकार न कर सकी। ये ठीक नहीं है इर्तजा, वो शहराम सर को देख लेगी। अनाम ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। सबकी जिंदगियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी पुरानी बात का वजूद होगा। सब कुछ मर गया है। इर्तजा की बात पर अनाब ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। मोहब्बत कभी नहीं मरती इर्तजा। उसके जताते लहजे पर इर्तजा सख्ती से लबों को भेज गया। परीसा के कदम जूं ही उस शख्स के करीब में जाकर रुके, मखसूस कलोन की महक ने उसे अपने हिसार में लिया था। उसने साकित पड़ती धड़कनों समेत हलक तर करते उसकी पुष्ट को देखा। एक्सक्यूज मी, उसका मजबूत लहजा सुन रुख फेरे खड़े शहराम ने आंखों को मौन कर खोला तो प्रीसा ने हैरत से गाजान की जानिब देखा। डैड, गाजान की आवाज पर अगले ही लम्हे उसने रुख मोड़ते जूं ही प्रीसा की जानिब देखा। प्रीसा जहां की तहां रह गई। उसने बेयकीनी की कैफियत में अपना हाथ थामे खड़े गाजान की जानिब देखा और एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया था। वो सब जो उसके किसी शदीद रद्द अमल का इंतजार कर रहे थे उसे मुस्कुराता देख उन सबने ना चाहते हुए भी तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। ओह वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो हंसते हुए बोली। शहराम ने उसे देखकर लब भेजे थे। वेल माई सेल्फ प्रीसा अफंदी, कुछ कुछ तो याद होगा ही, वो मुस्कुराकर बोल रही थी मगर शहराम को उसका लहजा साफ इत्तक आमेज लगा था। बाकी सब खुद को लापरवाह जाहिर करने की खातिर अपने अपने कामों में उलझ चुके थे। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? गाजान की आवाज पर प्रीसा ने एक सपाट निगाह उस पर डाली। मतलब जो वो सोच रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त था। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। आपके डैड ने कभी जिक्र नहीं किया आपसे? खैर जो भी है, एक बार तो आपसे मुझे मिलना ही था, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ आप ही की बदौलत हूँ। वो दोनों हाथ सीने पर बांधते जताने वाले लहजे में बोली। आपने भी आज इस महफिल को शर्फ बख्शा है। वेलकम बैक मिस्टर शहराम। इट्स प्लेजेंट टू मीट यू ऑलवेज। उसने धीमी सी मुस्कुराहट समेत उसे मुखातिब किया था जिसकी तमाम तर तवज्जा किसी नादीदा नुक्ते पर जमी थी। उसने चौंक कर प्रीसा की जानिब देखा जिसके चेहरे पर चाह कर भी
किसी गुजरी बात का शाइबा तक न था। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? उसने गहरा सांस भरते अपने हवास बहाल किए और बामुश्किल मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा, जो दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे उससे मुखातिब थी। जब उसने उसे देखकर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था, तो फिर वो क्यों अपने लहजे या तासुरात से उस पर कुछ वाज़ेह करता? मेरा हाल। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते मज़े से हँसी। उसने आँखों को भी भरपूर अंद उसकी आँखों ने भी भरपूर अंदाज में उसकी खिलखिलाहट का साथ दिया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ज़िंदगी खराब करने की वजह बने ना, वो हाल-अहवाल पूछते हुए अच्छे नहीं लगते खान साहब, इसलिए आइंदा इज्तनाब कीजिएगा। वो आँखों में अजीब सा तासुर लिए नरम लहजे में बोली। शहराम का दिल उसकी बात पर धक से रह गया। अभी आपने कहा था कि गुस्सा नहीं करते और आप इसी वजह से मुझे अच्छी लगती हैं। गाज़ान ने एक बार फिर उसका हाथ थामा था। परीसा ने नरमी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद किया। आई एम सॉरी, मगर मैं आपको जवाब में चाहकर भी अच्छा नहीं कह सकती। इसे समझा दीजिएगा खान साहब कि राह चलते लोगों को अच्छा नहीं समझना चाहिए। मैं भी इस खुशफहमी का शिकार हुई थी। वो अजीब से लहजे में बोलती, एक अंदर तक उतर जाने वाली काटदार निगाह उस पर डालते तेज कदमों से वहां से निकलती चली गई। उसके बरक्स शहराम अभी तक सुन खड़ा उसके लहजे के जेरे असर था। उसे देखकर प्रीसा की आंखों में कोई एहसास, कोई चमक क्यों नहीं जागी थी? क्या वो सच में उसे भुला चुकी थी? क्या मोहब्बत इतनी जल्दी फरामोश कर देने वाला जज्बा था? ये सब सवाल उसके जहन में गटमट होते हुए उसके वजूद को झंझना रहे थे। गाज़ान ने अफसुर्दगी से शहराम की जानिब देखा, जो बेजान सा खड़ा था। डैड, वो चली गई हैं। गाज़ान दुख भरे लहजे में बोला। वो खुद नहीं गई गास, मैंने बेदर्दी से उसे अपनी जिंदगी से बेदखल किया है। वो शकीस्तगी से गोया हुआ। अगले ही लम्हे सद्दाम को अपने जानिब आता देख उसने गला खंकारते अपने हवास बहाल किए। वो उससे प्रीजा के इस तौर-अतवार के मुतालिक पूछना चाहता था, मगर किस मुंह से? ये बात वो समझने से कासिर था। प्रीसा लंबे लंबे ढक भरती सीधा वॉशरूम की जानिब आई। अंदर दाखिल होते ही आईने में अपना चेहरा देख वो दोनों हाथ बेसन पर रखते झुकी और गहरे गहरे सांस भरने लगी। मुझे नफरत है आपसे शहराम खान, नफरत। आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए काबिल नफरत है। घिन आती है मुझे आपसे। क्या समझ रहे थे आप कि दोबारा अपनी सूरत मुझे दिखाएंगे तो प्रीसा आफंदी गिरी पड़ी रह जाएगी? नहीं, काश आप मर जाएं शहराम खान, मर जाएं आप। वो बोलते बोलते थमी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका लहजा भीगा हो। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाते अपने आंसुओं को अंदर उतारा था। अब कमजोर नहीं पड़ूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीसा को शहराम की मौजूदगी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लहजों को हत्तुल इम्कान मजबूत बनाते हुए बोली और वो आईने में अपना अक्स देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराई थी। डैड, अभी नहीं जाना। वो उसका हाथ थामते मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला तो शहराम ने तासुब से उसकी जानिब देखा, जो कल को यहाँ आने को रजामंद नहीं था। चेहरा कैसे सड़ सा था, अब वापस जाने को तैयार नहीं था। क्यों? अभी क्यों नहीं जाना? वो कश्मगी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोला तो गाज़ान पूरे दांत उसे दिखाते मुस्कुराया था। डैड, हम वहाँ अकेले हैं और यहाँ इतने ज्यादा और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ ज्यादा मजा आता है ना? वो मुंह बसोड़ते हुए अपने दिल की ख्वाहिश उसके सामने रख रहा था। शहराम ने सहूलत से नफी में सर हिलाया। शट अप गास, ये आपका घर नहीं है जहाँ आप बसेरा डाल लें। वो उसे झिड़कने वाले अंदाज में बोला। गजान का चेहरा सरस से उतर गया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाई? उसी लम्हे उकब से ही फारिस ने उसके शाने के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए पूछा। अंकल, यू आर वेरी कूल। गजान की चहकती आवाज पर फारिस ने सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देखा, क्योंकि उसके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल मरहला था कि ये वही बच्चा बोला है। क्या सच में? वैसे आधी जिंदगी बीत गई मेरी, मगर मैं तुम्हारे बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनने को तरस गया हूँ। ऐसा कंजूस इंसान है ना ये तारीफ के मामले में कि बस। वो नाक मुंह चढ़ाते नागवारी से गोया हुआ। डैड हमेशा से ही ऐसे हैं अंकल, आप चले, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। वो उसका हाथ थामते हुए बोला। अगले ही लम्हे फारिस ने उसकी बात पर हंसते उसे गोद में भरा और कदम आगे की जानी बढ़ाए थे। जाते जाते वो शहराम को देख बाएं आंख दबाते चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। वो अब दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे तन तनहा खड़ा किसी नादीदा नुक्ते पर निगाहें जमाए खड़ा था। मान न जाने किसी की निगाहों की तपिश थी या इत्तेकाद। उसने ठिठक कर बाएं जानिब निगाहें उठाई थी, मगर वहां के मंजर को देख वो बेबसी से मुठ्ठियां भेज गया, क्योंकि प्रीसा आशिक से हंस हंस कर कोई बात कर रही थी। उसे तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर ये शायद महज उसकी गलतफहमी ही थी। वो ठंडी आह भरकर रह गया। उसकी निगाहें फेरते ही प्रीसा की निगाहें एक बार फिर उसकी जानिब घूमी थी, मगर आज इन निगाहों में तड़प या हसरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ खालीपन था, सूनापन था, जो उसके चेहरे के तासुरात को भी अपनी लपेट में ले रहा था। मगर वो अपना आप किसी पर भी आश्कार नहीं करना चाहती थी। तभी अपने चेहरे पर सर्द मोहरी का खोल चढ़ाते आदिल की जानिब बढ़ गई। शहराम ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते कदम सद्दाम की जानिब बढ़ाए तो जो जैमल को गोद में लिए खड़ा था। सद्दाम, उसकी भारी आवाज पर सद्दाम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और सबसे माजरत करते उसके साथ एक जानिब चला आया। अब वो कुछ इस तरह खड़े थे कि उसके ऐन पुष्ट पर आदिल, आफिया और प्रीसा खड़े थे। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसने नासमझी से इस्तफसार किया। हाँ, वो दरअसल मेरे ख्याल में अब मुझे वापसी के लिए निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है, मुश्किल होगी फिर। वो धीमे लहजे में गोया हुआ। उसकी बात पर सद्दाम के साथ साथ अकब में खड़े प्रीसा और आदिल की समातों में भी उतरी थी। उसकी बात पर प्रीसा का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये वक्त ठीक नहीं है, इतने रात गए निकलना, और अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए हो इतने सालों बाद, बच्चा भी घुल मिल गया है सब में, ऐसे उसकी खुशी में भी खलल पड़ेगा। वो उसका शाना थपथपाते समझाने वाले अंदाज में बोले, पर ईसा की निगाहें ना चाहते हुए भी गाजान की जानिब उठी थी। अंकल, वापसी तो नहीं होगी एबटाबाद के लिए इस वक्त, मगर यही नज़दीक ही फ्लैट खरीदा है मैंने, उसी में क्याम होगा कुछ दिन, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी डीलिंग्स भी करनी है। इसलिए आप परेशान मत हों, गाजान की बात तो मैं इसे बच्चों से मिलवाने लाता रहूँगा। वो उन्हें तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, साथ ही गाजान को पुकारते अपनी जानिब आने का इशारा किया। वो भागा भागा उसकी जानिब चला आया। बाबा, मुझे नहीं जाना, वो मुल्तजाना लबो लहजे में बोला तो शहराम ने सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखा था। पर ईसा इश्तियाल के आलम में मुठिया भेजते खुरदरी निगाह उस पर डालते तेज कदमों समेत जीनों की जानिब बढ़ गई। उसे पहली सीढ़ी पर कदम रखते देख गाजान ने झिंझलाते हुए अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराया और भागने वाले अंदाज में जीनों की जानिब बढ़ा। पर ईसा ने राहदारी में मौजूद टेरेस पर पहुंचते ही आंखें सख्ती से मेज कर खोली। उसका दिल जल रहा था। उसका दिल जैसे किलची किलची हो गया था। जब्त के कड़े पहरे वो खुद पे बिठाए न जाने खुद को कौन से कड़े इम्तिहान में डाले बैठी थी। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों में बालों को भेंचा और रेलिंग में बाजू टिकाते चेहरा झुका गई। मान किसी के कदमों की चाह पर उसने धड़कते दिल समेत सरस से रुख मोड़ते देखा तो वहां खड़े गाजान को देख उसका दिल जलकर राख हो गया। अब वहां से ऐसे क्यों आ गई? वो चेहरा उठाए उसे सवाल कर रहा था। पर ईसा ने उसे नजरअंदाज करना ही जरूरी समझा, तभी जाने के लिए मुड़ी थी, मगर अपने हाथ में किसी की नरम गिरफ्त का एहसास उसे लहूलुहान कर गया। उसकी आंख से ना चाहते हुए भी एक आंसू टूटते गाल पर बहा था। क्या मसला है आपके साथ? मुझे आपसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं? खुदारा अपने माँ बाप के साथ रहिए और मुझे भी जीने दें। वो उसके सामने दोनों हाथ जोड़ती तल्खिया लहजे में बोली। गाजान का दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। प्रीसा ने गुस्से से उसका हाथ झटका और सिसकी भरते से पहले कि वहां से जाती उसकी बात ने उसके कदमों में जंजीरें सी डाल दी थी। उसने बेयकीनी की कैफियत में गाजान की जानिब देखा। बाबा तो हैं, मगर मामा नहीं है। मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। बाबा कहते हैं शी इज डेड। उसकी बात पे वो दीवार का सहारा लेते बाकायदा लड़खड़ाई थी। आंखों के सामने धुंधलापन छाया था। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या बता रहे हो तुम? वो झिंझला कर बोली। उस छोटे बच्चे की बातें उसके एसाबों पर सवार हो रही थीं। कसूर किसी का भी तो नहीं है, वो मासूमियत भरे लहजे में बोलते उसे साकित कर गया। प्रीसा ने हलक तर्क करते उसकी जानिब देखा। देखो ना, मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, एंड दैट्स इट। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपको मैं अच्छी लगी, बात खत्म। जो चीज़ अच्छी लगे उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। बाज़ चीज़ें शराब हुआ करती हैं जिनके पीछे जितना भागोगे उससे आपके ही हाथ पैर चलनी होंगे। वो भीगे समझाने वाले लहजे में बोलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर सामने खड़े शहराम को देख उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। आइंदा मेरे ताक़ुब में मत आना। वो शहादत की उंगली उसकी जानिब उठाते पथरीले लहजे में बोली थी। शहराम के चेहरे पर सर्द मोहरी छाई हुई थी। इससे पहले कि वो वहां से निकलती, शहराम ने आंखों के इशारे से गाजान को वहां से जाने का कहा था। वो ढीले ढाले कदमों से वहां से निकलता चला गया। उसके जाते ही शहराम ने सख्ती से उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया था। प्रीसा के तो सर पे लगी तलवों पे भुजी। हाउ डेयर यू टू टच मी? वो हाँफते हाँफते गुर्राई। हिम्मत की बात नहीं करना प्रीसा अफंदी। अगर हिम्मत दिखाने पर मजबूर हुआ ना तो मैं कल ही अगर हिम्मत दिखाने पर मजबूर हुआ ना मैं तो आप कल ही मेरे पहलू में मेरी बीवी की हैसियत से खड़ी होगी। उसके खुरदरे लहजे पर प्रीसा ने झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद करवाई थी। इतना खुशगुमानियों में जीने की जरूरत नहीं है मिस्टर शहराम। शक्ल देखी है आपने अपनी आईने में? ना ही इतना आसमान में उड़ने की जरूरत है कि जमीन पर मुंह के बल गिरना पड़े। वो तने तने तासुरात समेत झाड़ी। कभी इसी शक्ल से मोहब्बत की थी आपने? वो तंज करने से बाज ना आया। कभी की थी, मगर वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब आप जब भी सामने आते हैं, जानते हैं दिल में कौन सा जज्बा बेदार होता है? सिर्फ और सिर्फ नफरत का। वो तो मुस्कुराना लहजे में बोली। चले, मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, कम अज कम मुझे देखकर दिल में कोई जज्बा तो है ना। उसका लहजा जताने वाला था। पर ईसा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझ लें ये कि आइंदा मेरे बेटे से इस तरीके से मुखातिब होने से कबल एक बार जरूर सोच लीजिएगा, वरना ठीक नहीं होगा। कोताहियां मेरी हैं तो मेरी हद तक महदूद रहें। एक मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और गास मासूम है। गॉट इट? वो जताने वाले लहजे में बोलते गहरी निगाह उस पर डालता वहां से निकलता चला गया। आप हमेशा से ही ऐसे ही हरदरम और अपनी बात मनवाने वाले हैं, मगर आज मैं भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि हरदर्मी अब मुझ में भी कूट कूट कर भरी गई है। वो तुम सपाट लबो लहजे में बोलती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कि वो कमरे का दरवाजा बंद करती, अफीफा ने उसका हाथ रोकते अंदर आते खुद ही दरवाजा बंद किया था। पर ईसा ने ताज्जुब से उसकी हरकतों का मुलाहिजा किया। अब तुम्हारे साथ क्या मसला है? वो चिढ़कर बोली। अफीफा ने तासुब से उसकी जानिब देखा। क्या हो गया है तुम्हें परी? इतनी बदतमीज तुम पहले तो नहीं थी, अब क्या हो गया है तुम्हें? वो नासमझी से गोया हुई। लहजे में हल्के हल्के तंज की आमेजिश थी। पागल हो गई हूँ मैं, वो सपाट लबो लहजे में बोली।
एक बात बताओ, जीमल तुम्हारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है? वो दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली। इस बात का यहाँ क्या मतलब हुआ अफीफा? वो मुझे दिलो जान से अजीज है। आफ्टर ऑल वो मेरी भतीजी है। क्या इस सब के बाद भी जो सदाम ने तुम्हारे साथ किया था? अफीफा की बात पे परीसा के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। उसने फीके पड़ते चेहरे समेत उसकी जानिब देखा। ये किस किस्म का सवाल है अफीफा? उसकी जुबान साथ देने से इनकारी थी। बताओ ना, इस सब के बाद भी जैमल के लिए तुम कभी तलक हुई नहीं ना, तो फिर शहराम भाई के किए का सारा कसूर तुम उस बच्चे पे कैसे डाल सकती हो, जिसे इस सब के बारे में जरा भी इल्म नहीं, जो सिरे से ही मासूम है, बिल्कुल मासूम। वो वसीले लहजे में बोली तो प्रीसा के चेहरे के आसाब तन गए। ओ, तो तुम यहाँ अपने सो कॉल्ड शहराम भाई की सफाई पेश करने आई हो अफीफा। रही बात इस बच्चे की, तो वह इस औरत की औलाद है अफीफा, जिसके लिए उन्होंने मुझे ठुकराया था। मैं कैसे वो सब फरामोश कर दूं, मुझे बताओ। बोलते बोलते उसका लहजा भीगा था। अफीफा ने बकायदा अपना सर पीटा, जो सारी सूरत हाल से अनजान होते सबके लिए अपने जहन में जहर पाल रही थी। इस औरत ने उसे जन्मा जरूर है, मगर उसने भी अपनी माँ खोई है परी, और ना जाने उसे क्या जताना चाह रही थी। प्लीज अफीफा, मुझसे उस बारे में बात ना ही करो तो बेहतर है। मैं किसी भी किस्म की तलख कलामी में नहीं पड़ना चाहती। मैं इस घर में सुकून के लिए आई हूँ। मेरे लिए बेसुकूनी का सबब मत बनो, खास तौर पर उस शहराम खान और उनकी औलाद का जिक्र करके। वो उसके सामने दोनों हाथ जोड़ती मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली तो अफीफा ने फिलहाल उसकी हालत के पेश नजर वहां से जाना ही बेहतर समझा था। उसके वापस जाने पर प्रीसा ने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। दिल और दिमाग में अभी भी अफीफा की बातें ही गर्दिश कर रही थीं। बहुत मुश्किलों से खुद में ये हौसला पैदा किया है कि उसके सामने होते हुए भी उसे फरामोश कर दूं, मगर ना जाने क्यों किस्मत बार बार उसी दोराहे पर लाकर खड़ा क्यों कर देती है। वो अजियत से सोच रही थी। उसने लांबी पलकें आंखों पर गिराते उसे मेचा तो आंख से एक बेमोल आंसू टूटते उसके गाल पर बह गया, जिसे वो सरस से हाथ की पूछ से पहुंच गई थी।